السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سمرہ بخاری کا لے کر آئی ہوں دشت ہجراں میں۔ بہت پیارا ناول ہے اور سمرہ بخاری بہت اچھا لکھتی ہیں اور آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ کتنا مزہ آتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ جب بھی یہاں آتی ہوں واپس جانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ لیلا نے یہ بات اس وقت کہی جب کچن میں یہاں وہاں ناشتہ کرنے والوں کا ہجوم تھا اور کوکنگ رینج کے سامنے کھڑی سونیا، آسیہ اور بھابھی بانو ناشتہ بنا بنا کر بے حال ہو رہی تھیں۔ اللہ کرے تمہیں بھی کوئی ایسا ہی بھرا پورا گھرانہ نصیب ہو جائے، جبران نے سلائس منہ میں رکھتے ہوئے جل کر دعا دی تھی۔ ہاں تو کیا، اتنا مزہ تو آتا ہے۔ لیلا نے وہ پراٹھا اٹھا لیا جو سونیا نے ابھی ابھی تایا جان کے لیے بنایا تھا اور اب آملیٹ بنانے کی تیاری میں تھی۔ پراٹھا ہاتھ سے جاتے دیکھا تو آملیٹ چھوڑ چھاڑ ادھر لپکی۔ پلیز لیلا، یہ تایا جان کا ناشتہ ہے، تم سلائس لے لو۔ ایسے ہی سلائس لے لوں؟ وہ تو میں اپنے گھر میں بھی کھاتی ہوں، دادوں کے گھر تو میں مزے کے لیے آتی ہوں۔ اس پر ذرا بھی جو اثر ہوا ہو سونیا کی فریاد کا۔ ابا ناشتہ مانگ رہے ہیں، انیلا نے دروازے سے جھانک کر اعلان کیا۔ تو آ کر بناؤ نا ابا کا ناشتہ۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے ابا کچے کے بجائے پکا ہوا ناشتہ پسند کرتے ہیں؟ جبران نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہا تھا کہ آج صبح ہی تائی سلمہ سے ڈانٹ پڑ گئی تھی اور وہ نہایت بگڑے مزاج کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ میں بھی فارغ نہیں ہوں، ماسی کے سر پر کھڑی صفائی کروا رہی ہوں۔ تو بتایا کیوں نہیں اپنے ابا کو؟ پہلے تو نہیں بتایا، اب ضرور بتاتی ہوں، وہ جبران کو دیکھ کر دھمکی والے انداز میں بولی تھی۔ اتنی دیر میں سونیا نے دوسرا پراٹھا بیل کر توے پر ڈال دیا تھا۔ آسیہ دلیا پکانا چھوڑ کر آملیٹ کا آمیزہ تیار کرنے لگی تھی، جبکہ بھابھی جلدی جلدی شوہر کا ناشتہ بنانے میں لگی تھی۔ ساتھ میں پھوپھی ساس کے لیے لسی بن رہی تھی۔ انیلا شکایت لگانے کے ارادے سے واپس ہونے لگی، تب عطرت اور ریحان نے آواز دے کر روک لیا۔ یار کیا ہے، صبح ہی صبح جھگڑا مت کرو، ہم گھر سے نکل رہے ہیں، پھر سارا دن برا گزرتا ہے۔ اس نے میرے ابا کے بارے میں غلط بات کی ہے، اور پھر میرے ابا کا پراٹھا بنانا ہی ان لوگوں پر کس قدر بھاری ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جو آٹے کا پراٹھا بناتے ہیں ان کو ابا کا بناتے مشکل تو پیش آئے گی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر چائے پینے لگا۔ کچن میں موجود سبھی ہنس پڑے، خاص کر لیلا کو تو بڑے زور کی ہنسی آئی، جبکہ انیلا کا منہ ایک دم سے لال ہو گیا۔ اب تو ضرور ہی بتاؤں گی ابا کو، وہ پیر پٹکتی واپس مڑ گئی۔ یار کیا ہے، صبح صبح ہی؟ آذر نے منہ بنا کر جبران کی طرف دیکھا، پھر سر جھٹک دیا۔ تمہارے ہی ابا کے بارے میں اس نے یہ سب کہا ہے، عطرت نے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے، وہ صرف ناشتہ کرنا چاہ رہا تھا، اور یوں بھی اسے اپنے ابا سے کافی شکایتیں تھیں۔ ناشتہ صبح 7:30 بجے شروع ہو کر 10 بجے ختم ہوا کرتا تھا۔ نوجوان پارٹی میں سے اکثریت کو صبح نکلنا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے وہ کچن کا رخ کرتے، پھر بزرگ، اور سب سے آخر میں وہ نکمے نوجوان جنہیں نہ کالج یونیورسٹی جانا ہوتا نہ جاب کے لیے نکلنا تھا، اور ان کی تعداد میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا جب چھوٹی پھپھو کے بچے بھی ادھر دھاوا بول دیتے۔ آج کل گرمی کی وجہ سے کالج بند تھے، اس لیے لڑکیاں گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ سونیا اور آسیہ کا کبھی کبھار عطرت بھی ہاتھ بٹا دیتی، جبکہ صوبیہ اور انیلا کو ان فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آذر کو آج کل بقول اس کے بہت ضروری کام سے دوست کی طرف جانا ہوتا تھا، اس لیے وہ جلدی اٹھ جاتا تھا، جبکہ ریحان ڈٹ کر سونے کا عادی تھا۔ اس گھر میں آ کر یہ احساس شدت سے ہوتا تھا، زندگی کا مقصد کھانا پینا اور سونا ہے۔ 10 بجے تک ناشتہ، 1 بجے تک کچن کی صفائی، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری، جس میں ایک ڈش گوشت کی اور ایک دال یا سبزی کی ضرور ہونی چاہیے۔ روٹی کے ساتھ ساتھ چاول لازمی ہے، اور سلاد چٹنی کے بغیر بھی بھلا کھانے کا تصور ہے؟ اکثر کھانے کے بعد میٹھا بھی کھانے کو جی چاہتا تھا۔ 4 بجے دوپہر کے کھانے سے کچن سمٹا ہے، پھر 4:30 5:30 شام کی چائے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد رات کا کھانا۔ یہ کھانا پکانا جن کی ذمہ داری تھی، ان کے لیے زندگی کی کسی اور ہم آہنگی کی جانب دیکھنا بھی ممکن نہیں، اور جو کچن میں جھانکتی بھی نہیں، انہیں مصروفیت کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ مثلاً بڑے ابا سے آج چھوٹی یا بڑی بھابھی کی کیا شکایت لگائی جائے، بہو کو آج کس بات پر ٹوکا جائے، بازار جانے کا پروگرام بنایا جائے، یا پھر گرمی کو دیکھتے ہوئے گھر پر ہی کوئی پروگرام رکھ لیا جائے۔ گھر کا نظام بظاہر تو بڑی پھپھو کے دم سے چل رہا ہے، یہ بات بڑی پھپھو دن میں کئی بار جتاتی ہیں۔
بڑے ابا بھی اسے پوری طرح تسلیم کرتے ہیں۔ تائی خالدہ کا مفاد بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہے، جبکہ تائی خدیجہ اور جبران کی امی عطیہ بیگم کا خیال ہے اگر بڑی پھپھو دخل اندازی ختم نہیں تو کچھ کم ہی کر دیں، گھر کا ماحول کافی خوشگوار ہو سکتا ہے، مگر ان دونوں کی یہ سوچ بس انہی دونوں تک محدود ہے۔ وہ اپنی بات کسی سے کہہ نہیں سکتی کہ یہ دونوں ہی اس گھر کی مظلوم ہستیاں ہیں۔ تائی خدیجہ بیوہ تھیں اور یہ بیوگی شادی کے 10 سال بعد ان کا نصیب بن گئی تھی، جب آسیہ بانو اور آصف بہت چھوٹے تھے، اور عطیہ بیگم اس شخص کی زوجہ ہونے کا اعزاز رکھتی تھیں جنہوں نے اس پورے خاندان کا بار اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ جناب سلطان صاحب بڑے ابا کے تیسرے نمبر والے سپوت، بلکہ ہونہار سپوت، نیک دل فرما بردار اولاد، شادی کے 6 سال بعد فرانس سدھار گئے تھے، پیسہ بھیجا اور خوب بھیجا۔ ان دنوں دادی زندہ تھی اور اللہ بخشے بڑی زندہ دل خاتون تھی۔ بیٹا جو پیسہ بھیجتا تھا اس کا بڑا حصہ وہ اپنے لیے رکھ لیتی اور اتنے خوبصورت ڈیزائن کے زیور بنوا کر پہنتی کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا اس عمر میں ایسے زیورات آپ پر اچھے نہیں لگتے، بہوؤں کو بنوا دے تو کوئی بات بھی تھی۔ سلطان نے چند ماہ بعد ہی شور مچا دیا، گھر سے دور دل نہیں لگتا، ہر فون پر آہیں بھرا کرتے، اماں کے دل پر گھونسا سا پڑتا۔ کمال شفقت سے دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ اماں عطیہ اور بچوں کا کیا ہوگا؟ اے لو، میں کوئی طلاق دینے کی بات تھوڑا ہی کرتی ہوں، یہی رکھوں گی انہیں اپنے پاس۔ تمہارے بیوی بچے ہمیں تو جان سے بڑھ کر ہیں، کلیجے سے لگا کر رکھیں گے۔ پھر بھی اماں وہ واویلا تو کرے گی۔ واویلا کس چیز پر کرے گی؟ میکے میں کون بیٹھا ہے اسے سنبھالنے والا؟ ایک چھوٹی بہن جس کو بیاہے بھی 2 سال ہوئے، اور ایک بھائی جو ابھی 8ویں میں پڑھتا ہے، باپ معمولی ملازم اور مریض۔ سلطان صاحب ماں کے فرما بردار، ذرا جو دیر لگائی ہو، خوبرو تھے، چرب زبان بھی، مگر سب سے زیادہ نصیب کا تارا عروج پر تھا۔ مل گئی ایک امیر فرانسیسی خاتون، پہلے شوہر کی وسیع جائیداد کی مالک، اور سلطان صاحب بھی اس جائیداد میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ادھر عطیہ کے دل پر کیا گزری، وہ کیسے کیسے تڑپی، کتنا روئی، کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس گھر میں آ کر اگر کوئی غم گسار تھا تو وہ خدیجہ بھابھی تھیں، جو خود شوہر کے بعد سسرال کے رحم و کرم پر پڑی تھیں، اور جن کی یہاں حیثیت ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے لگی، اور ان کے بچے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ سلطان احمد سے چھوٹے اور گھر کے لاڈلے سپوت سخاوت احمد تھے، پڑھے لکھے، با تمیز، اور سب سے بڑھ کر با اعتماد، اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق بسر کرنے والے۔ شادی خاندان میں کی، مگر اپنی پسند سے۔ سلمہ بیگم ان کی پھپھو ذات تھیں، اماں کو سخت ناپسند، ان کی ایک ایک عادت ناپسند۔ صرف اماں ہی کیا، سلمہ کو تو خاندان میں اکثر لوگ انہیں کی آزاد خیالی کی وجہ سے ناپسند ہی کرتے تھے۔ ان کا سب لڑکیوں میں زیادہ تعلیم یافتہ ہونا، نت نئے فیشن اپنانا، اکیلے بازار چلے جانا، سب کو سخت برا بھی لگتا اور کچھ مروب بھی کرتا۔ انہی سلمہ بیگم کا نام جب سخاوت احمد نے اپنے والدین کے سامنے رکھا، اماں تو ہتے سے اکڑ گئیں۔ ابا البتہ سوچ میں پڑ گئے کہ سلمہ بھانجی ہوتی تھیں۔ پھر اماں کے لاکھ انکار کے باوجود سخاوت نے بیاہ رچایا تو سلمہ سے، اور پھر شادی کے دوسرے ماہ کے آغاز میں ہی الگ مکان بھی لے لیا۔ یہ دونوں جرم اماں کبھی معاف نہیں کر پائیں، جب بھی سخاوت ملنے آتے یہی کہتی، غلطی کی ہے، پچھتاؤ گے، دیکھ لو سارا خاندان کیسے رچا بسا ہے، بہویں کتنے امن کے ساتھ ایک چھت تلے رہتی ہیں، اور بچے کیسے خوش باش ہیں، مل کر کھیلتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات کہ پڑھنے کا یہاں ٹائم ہی کب ہوتا تھا، بھانت بھانت کے لوگ وقت بے وقت کسی نہ کسی کے ملنے والے چلے آ رہے ہیں، اور آبادی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ خدیجہ اور عطیہ کو کچن سے فرصت نہیں، خالدہ کو ساس سسر کی چاپلوسی میں ہی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور بڑی پھپھو خود کو صرف حکم دینے کا حقدار سمجھتی تھیں، باقی فضول کے کام نپٹانا ان کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں، گھر آنے والے وہ مہمان جو ان کے پسندیدہ ہیں، انہیں صرف اور صرف وہ خود اٹینڈ کرنا پسند کرتی ہیں، اور ان کی ناپسندیدہ ہنسی کی کیا مجال کہ وہ اس گھر میں قدم بھی رکھے۔ جس برس سلطان احمد نے دوسری شادی کی تھی، اسی سال بڑی پھپھو بیوہ ہوئی تھی اور ادھر چلی آئی تھیں۔ ویسے شوہر کی زندگی میں بھی ان کا زیادہ وقت یہاں ہی گزرتا تھا کہ دونوں میں کبھی بن ہی نہیں سکی تھی۔ پہلے بھی اپنے چاروں بچوں کے ہمراہ اکثر ادھر ہی پائی جاتی تھیں، اور اب تو مستقل رہنے کا جواز بھی بنتا تھا۔
یہ گھر ان کے بچوں کے لیے کسی ماموں ممانی یا ان کے بچوں کا نہیں، صرف ان کے نانا اور نانی کا تھا، جو ان سے بے حد پیار کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اول روز سے ہی نانا اور نانی کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دی۔ خدیجہ بیگم کا آصف ان کے ریحان اور صوبیہ کا ہم عمر ہی تھا، مگر باپ کی موت کے بعد ایک تو یہ بچے اس گھر میں رہتے ہوئے بھی بس پس منظر میں چلے گئے تھے، باقی کی کسر بڑی پھپھو اور ان کے بچوں کی آمد کے بعد پوری ہو گئی۔ بڑے ابا کو بیوہ بیٹی اور اس کے بچوں کا تو ہمیشہ ہی احساس رہتا تھا، مگر بہو اور پوتے پوتیوں کے بارے میں اس طرح کبھی نہیں سوچا۔ خدیجہ خاموش تھی، گلہ کرتی تھی تو کس سے، ان کے تو اپنے میکے والوں نے بھی اس مشکل گھڑی میں ساتھ نہیں دیا۔ 3 بھائی 2 بہنیں، سب اپنے اپنے گھر بار والے۔ کبھی کسی نے اتنا بھی نہیں کہا کہ بچوں کی اسکول سے چھٹیاں ہوں تو چند دن ہمارے پاس گزار لو۔ کبھی کسی بھائی نے چند روپے بھی یہ سوچ کر ہاتھ پر نہیں رکھے کہ اپنی اور بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشیں ہی پوری کر لینا۔ عطیہ کا حال بھی خدیجہ سے جدا نہیں تھا۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی، مگر وہ اسی بے وفا کے گھر میں رہنے اور اس کے رشتہ داروں کی خاطر خدمت کرنے پر مجبور تھیں۔ بس اتنا فرق تھا کہ ان کے سر پر والد کا سایہ تھا۔ وہ غریب آدمی تھے، مگر بیٹی اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی آتے ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، ان کے لائق کپڑوں، کھلونوں، دوسری چیزوں میں بڑی پھپھو ہزار نقص نکالتی اور خالدہ بیگم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی۔ باپ کی اتنی محبت سے لائی گئی ان چیزوں کی قدر عطیہ یا ان کے بچوں کو ہی ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کا یوں مذاق اڑانا برا تو بہت لگتا تھا، مگر وہ خاموش رہنے پر مجبور تھی۔ گھر کا سارا نظام انہی دونوں کے سہارے پہ چل رہا تھا، اور یہ دونوں ہی اس گھر کے بقیہ افراد کے رویوں سے بیزار اور اپنی قسمت کی خرابی پر حیران تھیں۔ انہیں بھلا اس گھر اور گھر والوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ صبح دونوں نماز ادا کرنے کے بعد ہی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں لگ جاتی۔ جس روز ناشتہ خدیجہ کو بنانا ہوتا، اس روز گھر کے تمام بچوں کو اسکول جانے کے لیے تیار کرنا عطیہ کی ذمہ داری ہوتا۔ خالدہ تو پھر بھی اپنے بچوں کو ناشتہ اپنی نگرانی میں کروا کر کچھ ذمہ داری کم کر دیتی کہ ان کا خیال تھا یہ دونوں اپنے بچوں کو تو اچھی طرح ناشتہ کرواتی ہیں، میرے بچوں پر توجہ نہیں دیتی۔ بڑی پھپھو کے بچے ذرا سمجھدار عمر کے تھے اور انہیں ماں سے شکایت لگانے کا سلیقہ خوب آتا تھا، اس لیے ان کی ماں کو یہ فکر نہیں تھی کہ کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے۔ وہ مزے سے بستر پر پڑی رہتی تھیں۔ بچوں کو اسکول روانہ کرنے کے بعد بکھرا سامان سمیٹنا بھی ایک مرحلہ ہوتا تھا، اور یہ دونوں بس سامنے کی چیزیں ذرا ہٹا دیتی کہ انہیں اس گھر کو صاف رکھنے کا سلیقہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خالدہ بیگم نے اوپر کی منزل پر اپنے لیے 2 کمرے بنوا لیے تھے، اور وہ بس انہیں ہی صاف رکھنا اپنا فرض سمجھتی تھی، یا ہفتے میں ایک بار اپنی نگرانی میں ساس سسر کا کمرہ صاف کروا دیتی اور بار بار جتاتی کہ آج ملازمہ کے سر پر کھڑے ہو کر میں صفائی کروا رہی ہوں تو کمرہ کیسے چمچم کرنے لگا ہے۔ سچ ہے، جسے محبت ہوگی وہی اتنی توجہ دے گا۔ وقت گزرتا رہا، سال، مہینے، دن، اور گھر میں نہ تو نیا فرنیچر آیا، نہ ہی پردے اور آرائش کا کوئی دوسرا سامان یہاں آیا۔ برتن بھی وہی سالوں پرانے، اور تو اور گھر کی ضروری مرمت بھی تبھی کروائی جاتی جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہتا۔ در و دیوار رنگ و روغن کو ترس گئے تھے، مگر کون ذمہ داری اٹھائے؟ دادا ابا کی جوانی پیسے کو ترستے گزری۔ اب جو پیسہ ملا ہے تو اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ خرچ کرنے میں کئی قباحتیں بھی تھیں، مگر اس گھر کے جوان پوتے فرمائشیں لے کر کھڑے ہو جاتے۔ جب یہ پوتے چھوٹے تھے تب بیٹا ناک میں دم کیے رکھتا تھا۔ اوپر کی منزل پر 2 بڑے کمرے بنوائے، ضد کر کے ٹائلوں والا باتھ روم بھی ادھر بنوایا۔ پھر اس زمانے میں موٹر سائیکل خرید لی، جب لوگ موٹر سائیکل کی سواری پر شرماتے نہیں تھے۔ گھر میں اب بھی وہی موٹر سائیکل تھی، ٹھیک ہے بہت پرانی ہو چکی تھی، مگر چلتی تو ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن لڑکوں کو اس پر سوار ہوتے شرم آتی تھی۔ اب تو خیر آہستہ آہستہ بڑی بیٹی رشیدہ کرتا دھرتا بن بیٹھی تھی، رقم کا حساب کتاب سب اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، مگر ابا تو خیر پھر بھی رکھتے تھے، اور جب یہ لڑکے یا لڑکیاں کسی قیمتی اور فضول چیز کی زیادہ ہی فرمائش کر کے انہیں زج کرتے تو وہ شکایت لے کر بڑے ابا کے پاس ہی آتی تھیں۔ بچے ایسی فضول فرمائشیں اکثر کرتے رہتے ہیں، اسی طرح پھر بڑے ابا کو اکثر اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا رہتا تھا۔ گھر کی حالت جیسی بھی ہو، رشیدہ پھپھو کے بچوں کی حالت بہت اچھی رہتی۔ لڑکیاں ہیں تو نت نئے فیشن اپنائے، سجی بنی، لڑکے ہیں تو وہ بھی جدید اسٹائل سے مزین۔ خالدہ بیگم نے بڑی پھپھو سے بنا کر تو بہت رکھی تھی، آنے بہانے پیسے نکلواتی ہی رہتی تھی، مگر بڑی رقم نہیں ہتھیا سکیں کہ رشیدہ بیگم بھی بڑی شے ہیں، اور خالدہ بیگم کے شوہر کی آمدن کچھ زیادہ نہیں، اس پر رشیدہ نے کہہ رکھا ہے
کہ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات وہ خود پورے کریں گے اور یہ اخراجات اس لیے بھی بہت زیادہ ہیں کہ ان کے بچوں کو ایڈمیشن تو وہ اچھے اداروں میں کم نمبروں کی وجہ سے نہیں مل سکا، اس کی کسر انہوں نے مہنگی مہنگی ٹیوشنز رکھ کر پوری کر لی تھی۔ نائلہ اور انیلا کو پڑھائی کے علاوہ ہر میدان سے دلچسپی تھی، مگر کالج جانا بے حد پسند تھا۔ وہ کالج ضرور جاتی تھیں اور یونیفارم کے بغیر جاتی تھیں، بڑے فخر سے وداؤٹ یونیفارم ہونے کا جرمانہ ادا کرتی تھیں اور ساتھی لڑکیوں میں پیسے کی ڈینگیں مارتی تھیں۔ ایک اچھے ادارے سے بیوٹیشن کے کورس کے لیے بھی رجوع کیا تھا، مگر ہاتھ میں صفائی نہیں تھی، وہاں ڈانٹ بہت پڑنے لگی تھی، جی اچاٹ ہو گیا۔ لیلا کی کزن کے ہاں بڑی اچھی پینٹنگز دیکھی، جب پتہ چلا کہ خود بنائی ہیں تو انیلا کو بھی شوق چڑھایا اور اب بھاری فیس کی ضرورت یہ ہنر سیکھنے کے لیے پیش آئی، مگر جو میک اپ نہ سیکھ سکی وہ تصویر کیسے بناتی؟ یہ شوق بھی ختم ہوا۔ کمپیوٹر کلاسز مگر بس اتنا ہی جو عام استعمال کے لیے کافی ہو، یہ فیس بھی بیکار گئی، اور ان کے بھائی جناب عاذر کو شوق تھا تو اعلیٰ لباس، مہنگے جوتوں، خوشبوؤں اور قیمتی گھڑیوں گاڑیوں کا، ان سب کے لیے بہت پیسہ چاہیے، مگر پیسہ ہی تو پاس نہیں۔ امیر لڑکوں سے دوستیاں پال لیں، جب کھاتے تھے تو لازماً کھلانا بھی پڑتا تھا۔ خالدہ بیگم جیسی اماں زندہ باد، جہاں تک ہو سکتا بیٹے کی فرمائشیں پوری کرتی، یہ بھی نہیں پوچھا خرچ کہاں ہوں گے۔ رشیدہ بیگم کے ساتھ بظاہر تو خالدہ بیگم کی بڑی صلح تھی، مگر دل ہی دل میں خار بھی کھاتیں جب یہ دیکھتیں کہ نند آپا اپنے بچوں کی خوب شاپنگ کر کے آئی ہیں اور خود بھی کیسے اچھے لباس پہنے گھوم رہی ہیں، تو سینے پر سانپ لوٹ جاتے۔ یہی حال ان کے بچوں کا تھا۔ انیلا اور نائلہ تو خیر ماں کی طرح منہ پر محبت جتانے والی عادت رکھتی تھیں، بظاہر صوبیہ اور عطرت کی دوست دکھائی دیتی، جبکہ عاذر کی اپنے دونوں پھوپھی زاد ریحان اور عرفان سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ ان دونوں کے پاس اچھے لباس، جوتے اور استعمال کی دوسری اشیاء دیکھ کر وہ جلد بھن جاتا۔ چچا کی کمائی پر جتنا حق ان کا ہے اتنا ہی ہمارا، مگر پھپھو ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھی ہیں۔ وہ جل کر ماں سے کہتا تھا، چپ کرو، کسی نے سن لیا تو برا ہوگا، بڑی آپا نام کی ایک ہی ہیں، اگر بیر باندھ لیا تو جینا عذاب کر دیں گی۔ ماں سمجھاتی اور وہ سمجھ بھی جاتا، رازداری سے کہتا، آپ نے اوپر کی منزل پر کمرے ڈلوا کر بڑی غلطی کی ہے، پاؤں تلے زمین ہونی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ کل کو اپنے حصے کے علاوہ بھی قبضہ کیا جائے۔ بات خالدہ کے دل کو لگی۔ اٹھتے بیٹھتے بڑے ابا اور بڑی پھپھو کو گھر کی تنگی کا احساس دلانے کے ساتھ 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 یہ بھی کہنے لگیں، یہ ساتھ کا خالی پلاٹ لے کر گھر میں شامل کر لیا جائے تو آنے والے مہمانوں کو سنبھالنا مسئلہ نہ رہے۔ بڑی پھپھو نے پہلے تو کان نہیں دھرے، پھر کچھ سوچ کر ایک روز بڑے ابا کے ساتھ مل کر چپ چپاتے ہی ساتھ کا پلاٹ اپنے نام پر خرید لیا۔ خالدہ بیگم کو اس کی مکاری کا پتہ چلا تو سینے پر سانپ لوٹ گئے، مگر عاذر نے کہا، فکر نہ کریں، بڑی پھپھو اب اس پلاٹ پر 2 کمرے ڈلوا رہی ہیں۔ بڑے ابا فرما رہے ہیں، مظلوم مجبور بیوہ بیٹی کے لیے سر چھپانے کا آسرا کر رہا ہوں تو کرنے دیجیے انہیں۔ بس بڑی پھپھو کے ان کمروں میں شفٹ ہوتے ہی آپ ابا، صوبیہ، انیلا نچلی منزل کے 3 بڑے کمروں پر قبضہ کر لیں۔ میں تو بڑے ابا کے کمرے سے دور ڈرائنگ روم کے ساتھ والا کمرہ لوں گا، آپ بھی چچی عطیہ سے اس کمرے کے برابر بنے کا کمرے خالی کروا لیں۔ جب ہم سب کے کمرے ساتھ ہوں گے تو مستقبل میں قبضہ آرام سے ہوگا۔ نیچے شفٹ ہوتے ہی ان اوپر کے 2 کمروں میں بھی اپنا کچھ سامان رکھ کر تالا ڈال دیجیے گا، یہ کمرہ کسی اور کو ہرگز نہیں ملنے چاہیے، یہ بھی انہی کمروں کے اوپر ہے جو ہم نیچے جا کر لیں گے۔ حاضر تم ذہین ہو۔ خالدہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا۔ عطیہ کو ان کمروں سے بے دخل کر کے وہ نیچے انہی کمروں میں آئیں جو کئی سال سے عطیہ اور اس کے بچوں کے پاس تھے۔ سونیا تو خیر کیا کہتی، جبران نے خاصا شور مچایا تھا، وہ اپنا کمرہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، نہ ہی ماں کے ساتھ، یہ بے انصافی اسے اچھی لگ رہی تھی، مگر تب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ اس کے شور کرنے پر بڑے ابا اور تایا نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے حصے میں گھر کے سب سے چھوٹے کمرے آ گئے تھے جو زمین لینے کے بعد بڑے ابا نے اپنی محدود آمدنی سے کھڑے کیے تھے۔ نیچی چھتیں، پرانے اسٹائل کی الماریاں اور دروازے، وہ کمرے اتنے بڑے تھے کہ وہاں جانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ لوگ عادی ہوتے چلے گئے اور اب اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے پاس وہی کمرے تھے۔ کمائی میرے باپ کی ہے اور عیش یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک روز جب بڑی پھپھو اپنے کمرے کے لیے ٹی وی اور نیا بیڈ لائی تھی، اس نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ پھر جب سلطان احمد کا فون آیا، بڑی پھپھو نے رو رو کر بتایا، تمہارے بچے ہر شے پر صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم ذرا سا بھی خرچ لیں تو انہیں برا لگتا ہے۔ سلطان نے اسی وقت جبران سے بات کی اور اسے بری طرح ڈانٹنے کے بعد کہا تھا، خبردار جو کسی قسم کا حق جتایا، یہ پیسہ میں اپنے باپ کو بھیجتا ہوں، اور میرا باپ اسے جس طرح اور جس پر بھی خرچ کرے، تم ٹوکنے والے کون ہوتے ہو؟
दूसरी बेगम से सुल्तान की अपनी तो कोई औलाद नहीं हो सकी, मगर पहले शोहर से उसका एक बेटा और बेटी मौजूद थे। सुल्तान ने उन्हें ही अपना समझ लिया था और कई बार बेगम और बच्चों के हमरा उनकी तस्वीर भी आ चुकी थी। जो हकीकी औलाद है उसे कभी पूछा नहीं। फ़ोन आता तब अतिया और बच्चों से सिर्फ रस्मी सलाम दुआ ही हो पाती थी कि उनसे मोहब्बत करने वाले बात करने को बेताब और बहुत से मौजूद होते थे। बाप ने इतनी बड़ी बात कह दी, फिर कभी जिब्रान ने उनके पैसे पर हक नहीं जताया। अम्मी, क्या ये बेहतर नहीं नहीं था कि हम लोग अब्बा की दूसरी शादी करने के बाद नाना के घर चले जाते? अब पढ़ी लिखी तो थी, कोई जॉब कर लेती और हमारी अक्सर ज़रूरतें तो जब तक नाना जिंदा रहे वो पूरी करते रहे, और अब मामू हमें कभी नहीं भूलते। हाँ जिब्रान, तुम यकीनन ठीक कहते हो। मुझे और तुम्हारी माँ को इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए था। तुम्हारी अम्मी भी तालीम याफ्ता है और मैंने भी बीएड कर रखा है, मगर हमारे माशरे का चलन कुछ अजीब सा है। औरत सर उठाकर चले उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जब तुम्हारे ताया फोत हुए, मैंने अपने सास ससुर से नौकरी करने की इजाज़त मांगी थी, मगर उन्होंने कहा दुनिया हम पर थू थू करेगी, ऐसा तो ख्याल भी दिल में मत लाओ। और मैं किस्मत की इतनी नामहरबानी पर टूट फूट जाने वाली अकेली औरत उन सब का मुकाबला नहीं कर सकी। और जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है, ये बेचारी तो तुम्हारे अब्बा की बेवफाई को कबूल ही नहीं कर पा रही थी। वो ऐसा भी कर सकते हैं। अतिया ने कहाँ सोचा था। फिर हम दोनों के जहन में ये बात भी थी, कल को हमारे बच्चे ही हमारे इस इकदाम को गलत करार देकर हमें इल्ज़ाम ना दे डालें। सो सब सहेलियाँ और इसी तरह किया जैसे इस घर के करता धरता करता धर करता धर्ताओं ने चाहा। खदीजा की बात पर अतिया ने सर्द आ भरी और बोली, सलमा को देखती हूँ तो सोचती हूँ उसने कितना दुरुस्त फैसला किया। वक्त पर बच्चों को अच्छा और अच्छा माहौल मुहैया कर दिया। अगर वो भी हमारी तरह खामोश हो बैठती तो आज उसके बच्चे भी इतने बाएतमाद और लायक ना होते। हाँ अतिया, मैं तो ये समझती हूँ मुख्तलिफ मिजाज इंसानों को एक घर में कैद कर देना इंसाफ नहीं। पता नहीं हमारे यहाँ लोग इस पर फख्र क्यों करते हैं। हालांकि करीब रहने वाले इन लोगों के दिल एक दूसरे के लिए नफरतों और कदूतों से पुर होते हैं, और ये सिस्टम इंसान को काहिल और निकम्मा भी बना देता है। अगर मैं शोहर की वफात के बाद जॉब कर लेती, इसी तरह रशीदा आपा भी यहाँ आने और अंदर ही अंदर आग लगाने के बजाय शोहर के बनाए मकान के एक हिस्से में रहकर दूसरा हिस्सा किराए पर दे देती तो जिंदगी का रंग कुछ और होता। मगर अब मेरे बच्चों के पास तो कुछ भी नहीं। मेरे शोहर का इंतकाल अपने बाप की जिंदगी में हुआ है। कानून की रूह से मैं और मेरे बच्चे इस मकान में हिस्सेदार हैं ही नहीं। मेरे आसिफ को उन्होंने सिर्फ इसीलिए बीए के बाद मुलाजमत के लिए कह दिया कि बकौल आसिफ के दादा और चाचा हमने जो कर लिया वही बहुत है। अब मजीद तालीमी खराजात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके सारे ख्वाब ही मिट्टी हो गए। अब चंद हज़ार की नौकरी है, बेचारा प्राइवेट एमए की तैयारी भी कर रहा है। लेकिन बाकायदा किसी अच्छे अदारे में तालीम हासिल करता तो क्या बात थी। ताए जान, अभी भी वक्त है, आप दोनों ही पढ़ी लिखी हैं, कुछ करें। जिब्रान की बात पर जख्मी सी मुस्कुराहट अतिया के लबों पर दौड़ गई। कहने लगी, कई साल हुए हम सिर्फ हुक्म सुनते और अमल करते हैं। खुद से कुछ सोचना, अपनी मर्जी से कुछ करना हम भूल चुके हैं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है जिब्रान कि ऐसा माहौल, ऐसी निगरानी इंसान को कमजोर और बेहिम्मत बना देती है। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा प्लीज अपनी बेटियों के हाल पर ही रहम करें, उन्हें तो चाकरी पर मत लगाएं। ताया और पुप्पो की बेटियां आराम फरमाती रहती हैं और हमारी बहनें उनसे छोटी होने के बावजूद कितनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं। दोनों चुप रहीं। क्या क्या बताती, दिल के जख्म कहाँ तक दिखाती हैं। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी कई साल से बेगुनाही की सजा भुगत रहे हैं। जबरी मुशक्कत पता नहीं कब खत्म होगी। अतिया की छोटी बहन अकीला खाला के शोहर अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब पर थे। फिर कुछ बीमारियों ने ऐसा आ घेरा कि उन्हें सेहत की खराबी की वजह से जॉब छोड़ना पड़ी। अब मसला था कि कौन से शहर में रहा जाए। अकीला को अपनी बाजी अतिया का हमेशा ही बहुत ख्याल रहा था। उन्होंने शोहर से इसरार करके न सिर्फ इस शहर बल्कि इसी इलाके में घर ले लिया। ये खबर जहाँ अतिया उसके बच्चों के लिए खुशी का बायस थी, वहीं बड़ी फूफो ने खासी नाक भून चढ़ाई थी। लो, अब खर्च में नया इजाफा, हर वक्त आना जाना रहेगा। ये बात उन्होंने तब कही जब अतिया के साथ साथ बच्चे भी यहीं मौजूद थे। जवाब में जिब्रान कुछ कहने ही वाला था, अतिया ने इशारे से मना कर दिया। हालदा आंटी और फूफो के कितने ही मिलने वाले हैं, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। उनके जाने के बाद जिब्रान गुस्से से कह रहा था, हम भला किस तरह कुछ कह सकते हैं। अतिया धीरे से बोली थी, काश मुझे कहीं से अलादीन का चिराग मिल जाए। मैं जिनको हाजिर करूंगी और कहूंगी, हमें इस घर से कहीं दूर ले चल, जहां मेरे हर काम में कीड़े निकालने वाला, मुझ पर अपनी मर्जी ठूसने वाला कोई ना हो। सोनिया बड़ी हसरत से कह रही थी। जिब्रान, सोनिया, अतिया आंटी कहाँ हैं आप लोग?
حسن ماموں کا فون آیا ہے، بانو اعلان کے انداز میں بولتی ادھر آئی تھی۔ حسن ماموں کا فون؟ یہ لوگ سب بھلا کر جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسن عطیہ کا چھوٹا بھائی تھا، ان سے کافی چھوٹا تھا۔ جبران سے تو بے تکلفی دوستوں جیسی تھی۔ وہ پنڈی میں ہوتا تھا، بہت محنتی اور زندہ دل لڑکا تھا۔ والد تو کوئی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، مگر بہت محنت کی اس نے، ادھر ادھر سے قرض لے کر چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اور اب جب بھی فون آتا یہی خبر ہوتی، آپا میں دن دنی رات چگنی ترقی کر رہا ہوں۔ لاہور آنا جانا بہت کم ہوتا تھا، مگر جب بھی آتا اپنی بہن اور بھانجوں کے ساتھ ساتھ خدیجہ آپا اور ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا۔ یہ بات سلمہ اور رشیدہ آپا کو بہت بری لگتی۔ صرف خدیجہ اور اس کے بچوں کے لیے ہی کیوں؟ کیا ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہتے؟ یہ تو کھلم کھلا ہماری بے عزتی ہے۔ تم لوگ ہم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے۔ عطیہ خاموش رہتی، ان کی باتیں بری بھی لگتی، خاص کر جب وہ حسن کو برا بھلا کہتی، مگر ان کے سامنے بول کر معاملے کو مزید بگاڑنا بھی تو عقل مندی نہیں تھی۔ ان دونوں کو یہ خود بظ ضرور رہتی کہ آخر حسن کا بزنس کیا ہے، کتنی بچت ہے اس کی۔ آج حسن کا فون یہ خوشخبری لیے ہوئے تھا، وہ اسی سنڈے کو لاہور آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خالو سجاد بھی تھے کہ انہیں یہاں مناسب قیمت پر گھر دیکھنا تھا۔ آپا کسی طرح دودھ میں مت پڑنا، ہم ایک دوست کی طرف ٹھہریں گے۔ میرے لیے کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے، میں تم دونوں کو چند روز مہمان بھی نہیں رکھ سکتی۔ عطیہ کی آواز بھیگ گئی تھی۔ فکر نہ کریں آپا، اب میں نے اپنا بزنس لاہور میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سجاد بھائی کے پاس اتنی رقم نہیں کہ مکان بھی خریدے، بزنس بھی شروع کریں، پھر ان کی صحت بھی انہیں محنت کی اجازت نہیں دیتی، میں انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے امی، بس بھی کریں، مجھے بھی بات کرنے دیں۔ جبران بے تاب تھا۔ عطیہ نے مسکرا کر ریسیور اسے تھما دیا۔ السلام علیکم ماموں، کیا حال ہے؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ارے بھانجے، بڑا کچھ ہو رہا ہے، جلد لاہور آ رہا ہوں میں اور سجاد بھائی وہاں اپنا بزنس اسٹارٹ کریں گے، اور میں نے تمہاری صلاحیتوں سے بھی پورا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری صلاحیتیں کون سی والی؟ جبران ہنس پڑا تھا۔ تم میں کچھ خفیہ صلاحیتیں، گہری نیند سوئی ہیں، مجھے خواب میں ایک بزرگ اطلاع دے گئے ہیں، بس اب میں انہی کو بیدار کر کے فائدہ اٹھانے کی سوچ رہا ہوں۔ بزرگ اور آپ کے خواب میں کیوں مذاق کرتے ہیں ماموں؟ ضرور شیطان ہوگا۔ ہاں، تمہارے بارے میں شیطان ہی بتا سکتا ہے۔ حسن بھی اس کے ماموں تھے، ادھر سے کھٹ جواب آیا تھا۔ دونوں نے زبردست کہکا لگایا، پھر جبران سنجیدگی سے بولا، ماموں آپ کے احسان تو پہلے ہی بھی بہت تھے، اور مجھے اپنے بزنس میں شامل کر کے تو سمجھے آپ مجھے خرید لیں گے۔ ایسی باتیں مت کرو بھانجے، تمہیں نہیں پتا تم انمول ہو چندہ۔ دونوں کے درمیان جذباتی مکالمے جاری تھے کہ سونیا نے ریسیور جھپٹ لیا۔ حسن کا تو آنا ہی ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، اور اب ساتھ میں یہ خبر کہ وہ جبران کو بزنس میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، اس بات نے تو خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ انہوں نے کب ایسا سوچا تھا؟ ان کے سامنے تو آصف بھائی تھے، بیچاروں نے جیسے تیسے دادا اور دایا کی منت کر کے بی اے تک تعلیم حاصل کی، پھر کئی سال ملازمت کے لیے دھکے کھانے کے بعد اب ایک فرم میں معمولی جاب کر رہے تھے۔ تایا چچا اور یہاں تک کہ دادا کی نظر میں بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، سب انہیں بے عقل اور بیکار آدمی کہا کرتے تھے۔ خدیجہ نے جب ان کے رشتے کے لیے خاندان کی لڑکیاں دیکھنا شروع کی تھیں تو ہر طرف سے انکار ہوا، بلکہ کچھ رشتہ داروں نے تو اس بات پر برا بھی مانا تھا۔ آصف پہلے ہی کم گو تھا اور حالات کے ستائے ہوئے تھے، اس بات نے اور بھی تنہائی پسند بنا دیا تھا۔ پھر خدیجہ غیر اور خاصے بدحال خاندان سے راحت کو بیال آئیں۔ راحت 5 بہنیں اور 3 بھائی تھے، ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ والد سبزی کی دکان کرتے تھے۔ راحت اور اس کی دو بہنیں پرائیویٹ اسکولوں میں سر کھپا کر معمولی تنخواہ لیتی تھیں۔ ان لوگوں کے لیے تو آصف کا رشتہ بہت اچھا تھا، اور وہ بے یقین تھے کہ واقعی وہ ان کی عام سی صورت والی بیٹی کے طلبگار بن کر آئے ہیں۔ راحت کو اس گھر میں روایتی ساس نندوں سے پالا نہیں پڑا، مگر آصف کی چچی اور پھپھو کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بھی مین میخ نکالنے میں اول روز سے پیش آتی تھیں۔ اس کے جہیز کے سامان میں نقص نکالے گئے تھے، تب ساس سے بڑھ کر کیسے اس کی دلجوئی کی تھی۔ جب اس کے بنائے کھانوں پر اعتراض ہوتے تب بھی ساس اور چچی ساس عطیہ بیگم اس کے کام کی تعریف کر کے اس کے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتی۔ راحت خدیجہ اور عطیہ کی بیٹیوں کی نسبت زیادہ بااعتماد تھی کہ وہ بچپن سے کسی دبے دبائے ماحول میں نہیں رہی تھی۔ کچھ تو دیر تو وہ پھپھو اور چچی خالدہ سے ڈر کر رہی، پھر رفتہ رفتہ اس نے لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ وہ ہدایات جاری کرتی رہتی، مگر راحت وہی کرتی جو اس کی مرضی ہوتی، اور اس کام میں جبران اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتا۔ وہ خود بھی بااعتماد اور بہادر لڑکا تھا، اس ماحول میں رہ کر بھی بہت مختلف تھا کہ اس نے اس کا اثر ذرا دوسرے طریقے سے قبول کیا تھا۔ وہ اپنی مدد آپ کرنے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے مخالفت کی پرواہ نہ کرنے والا بن گیا تھا۔
چھوٹے چچا اور چچی سلمہ، لیلی اور اس کے دونوں بھائی تبھی ہی ادھر آتے جب بڑے ابا باقاعدہ فون کر کے دعوت دیتے، ان کے اعزاز میں کھانے پکتے اور چچی پھپھو سمیت سبھی بڑی عزت اور محبت سے استقبال کرتے کہ چچا کی قیمتی گاڑی، چچی کے زیورات اور کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا انداز انہیں مرعوب کرتا تھا۔ والدین اور چھوٹے بھائیوں کی نسبت لیلی اچھی طبیعت کی مالک خوبصورت سی لڑکی تھی اور ہلہ گلا اسے بے حد پسند تھا۔ وہ یہاں آتی بھی اسی لیے تھی کہ گھر میں بہت سے لوگ تھے، عطرت، صوبیہ، نائلہ، انیلہ سے خاصی دوستی تھی تو خدیجہ کی بانوں اور آسیہ سے بھی وہ ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی۔ سونیا اس سے خاصی چھوٹی تھی مگر وہ سب کو اپنے گرد اکٹھا کر کے خوش رہتی، اسی لیے سونیا سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ لڑکوں کی شوخیاں شرارتیں بھی اسے اچھی لگتی، وہ ان کی کمپنی میں خوش رہتی ہے۔ عرفان، ریحان اور سب سے بڑھ کر عاذر تو لڑکیوں میں ہیرو بننے کا ویسے بھی بڑا شوقین تھا۔ کبھی نہ گھر گھر میں ٹکنے والے یہ لڑکے لیلی کی آمد پر ہی گھر میں نظر آتے اور اس کے بہت آگے پیچھے رہتے۔ پھر یہ خیال بھی تھا لیلی اگر ان میں سے کسی کو پسند کر لے تو چچا اسے اچھی جاب دلوا سکتے ہیں، یعنی ترقی کے امکانات بہت ہی روشن تھے۔ جبکہ اب تو چچا کا انداز بڑا لیا دیا ہوتا تھا، وہ یہاں زیادہ دیر ٹھہرتے بھی نہیں تھے اور ان بچوں کے ساتھ خاصی رکھائی سے پیش آتے اور ان کی نظر میں ان کے لیے کچھ ایسا تاثر ہوتا تھا کہ یہ سب احساس کمتری کا شکار ہو جاتے۔ یہی انداز سلمہ چچی کے تھے، وہ اور چچا اگر کسی سے تھوڑے متاثر تھے تو وہ جبران تھا۔ وجہ یہ کہ جبران ہمیشہ پڑھائی میں اچھا رہا اور اس نے کبھی بھی چچا چچی کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی، جبکہ باقی کے لڑکے اکثر سلام کرنے سخاوت چچا کی شاندار سے گھر پر حاضر ہوا کرتے تھے۔ جبران کے مزاج میں شوخی تھی اور وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتا تھا، اس کے کسی انداز سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ چچا کی دولت سے متاثر ہے اور وہ سچ بولتے کبھی چوکتا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد اور کردار کی روشنی بڑی اچھی لگتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی چھچورا فیشن نہیں کیا اور کبھی وہ لیلی کے آس پاس نہیں منڈلایا۔ ہمارے حسن ماموں آ رہے ہیں، فون اٹینڈ کر کے جو ہی سونیا باہر آئی عطرت ٹکرا گئی اور وہ اتنی خوش تھی کہ جوش میں اسے اطلاع دے دی۔ تو پھر کیا ہوا کہ آسمان سے اتر کر آ رہے ہیں؟ عطرت سے ایسے ہی جواب کی توقع کی جا سکتی تھی۔ جبران بھی سونیا کے پیچھے ہی کمرے سے نکلا تھا۔ عطرت کی بات سخت بری لگی، سونیا سے بولا، انہیں کیا بتا رہی ہو؟ یہ تو ہمارے مہمانوں کی آمد پر یہ حساب کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ کھانے پر کتنا خرچ اٹھ گیا ہے، حالانکہ مہمانوں سے زیادہ یہ خود دعوت اڑاتے ہیں۔ میں امی کو بتاتی ہوں، تم بدتمیز تو شروع سے ہو، اب تو ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہو۔ ہاں بلاؤ امی کو، ان سے بحث کیے بھی کئی دن ہو گئے ہیں، وہ کچھ بیمار سی لگنے لگی ہیں، فریش ہو جائیں گی۔ بظاہر وہ ہنس کر بڑے فریش انداز میں جیسے دوستانہ بات کر رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے میری امی لڑاکا ہیں، جھگڑا کیے بغیر انہیں چین نہیں آتا؟ تمہاری مرضی، جو بھی نتیجہ نکالو، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ جس نے کہا ہے اس کے منہ میں خاک اور سر پر بھی خاک۔ خاک تمہارے منہ اور سر پر، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو۔ امی امی، وہ پیر پٹکتی بڑی پھپھو کو پکارتی ان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اب پھپھو آپ کو بہت ڈانٹیں گی۔ سونیا کچھ گھبرا کر کہہ رہی تھی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کی پرواہ ہی کون کرتا ہے؟ وہ یہیں رک کر جیسے بڑی پھپھو کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ گرج چمک کے ساتھ وہ جلدی نازل ہوئی۔ تمہاری زبان کو لگام نہیں ہے؟ کسی نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ کہاں ہے تمہاری ماں؟ ذرا اس سے تو بات کروں۔ جو کچھ کہا ہے میں نے کہا ہے، ماں نے نہیں، مگر مجھ سے مقابلہ کرتے اکثر لوگ ڈرتے ہیں۔ مقابلہ؟ تو کل کا لونڈا میرا مقابلہ کرنے کھڑا ہو گیا ہے، منہ توڑ دوں گی تیرا، اپنی اوقات میں رہا کر۔ وہ آپے سے باہر ہو کر چلا رہی تھیں۔ جبران نے ان کا بی پی مزید ہائی کرنے کے لیے پانی کا پائپ اٹھا کر صحن میں لگے نل کے ساتھ لگایا اور بڑے پرسکون انداز میں چھڑکاؤ کرنے لگا۔ وہ چلاتی جا رہی تھیں، ادھر سکون اور اطمینان سے کام جاری و ساری تھا۔ آواز سن کر خالدہ بیگم ادھر چلی آئیں۔ پورے منظر کا جائزہ لیا، سمجھ میں نہیں آیا آخر ڈانٹ کسے رہی ہیں؟ سامنے عطرت اور صوبیہ کھڑی ہیں مگر وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کبھی نہیں ڈانٹ سکتی۔ سونیا کے پشت کی جانب دروازے سے چپکی کھڑی ہے اور ادھر جبران پانی چھڑک رہا ہے اور وہ تو ہر آواز سے بے نیاز دکھائی دے رہا ہے۔ آپا آپا جان، کیا ہوا؟ کیسے ڈانٹ رہی ہیں؟ بھاری بھرکم وجود کے ساتھ بھی خالدہ بیگم اچھا خاصا دوڑ لیتی تھیں۔ جب تک یہ میری جان کا دشمن گھر میں موجود ہے مجھے چین و سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ میرے بارے میں بکواس کرتا ہے، تمیز نہیں ایسے بڑے چھوٹے کی۔ آلیں آج ابا، میں تو فیصلہ کر کے رہوں گی۔ آپا جان، اور کسی کونے سے جھجکتی گھبرائی سی عطیہ بیگم برآمد ہوئی اور گھگھیائے ہوئے انداز میں پکارا، آپا۔ ماں کی آواز سن کر جبران نے مڑ کر ادھر برآمدے کی جانب دیکھا، پھر پائپ پھینک کر ماں کے پاس چلا آیا اور بولا، آپ اندر چل کر آرام سے بیٹھیں۔ ہاں ہاں، تم سب ہمارا چین و سکون غارت کر کے آرام سے بیٹھو۔ وہ پھر چلائیں، امی جی وہ باجی سعیدہ کا فون آیا ہے، کہہ رہی ہیں ہم آج شام کو آئیں گے۔ ریحان نے آ کر اطلاع دی۔ وہ بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئیں، پھر جبران اور عطیہ کو تیز نظروں سے گھورنے کے بعد باقی کا پروگرام مناسب وقت تک ملتوی کر کے واپسی کے لیے مڑ گئیں۔
थैंक्स यू बाजी सईदा, आज आएंगी तो मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूंगा। जिब्रान की बात पर दोनों लड़कियां टिटकी फिर यकजुबान होकर बोलीं, तुम्हें उनके सामने आने और बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूरी है, वो खुद तो सलाम करने आती नहीं है। अच्छा जाओ तुम दोनों, ये खामखा सता रहा है। खालदा बेगम के कहने पर भी वो माँ के पीछे अपने माँ के पीछे अपने वाले पोर्शन में चली गईं। बाजी सईदा आपा रशीदा के मिलने वालों में से थीं। आजकल कमाओ बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और आपा भी दो दो बेटियों वाली थी। बस इसीलिए उनकी फैमिली में बाजी सईदा की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। वो आती तो रशीदा बेगम उन्हें सीधा अपने पोर्शन में ले जाती और फिर इतरत और सोबिया को हदायत जारी होती, अपनी खाला के लिए कोक लेकर आओ, बाद में चाय बना लेना, चाय के साथ समोसे और केक ज़रूर होना चाहिए। फिर सईदा से कहती हैं, ए सईदा, कुछ और खाने को जी चाह रहा हो तो बताओ, ये सच तकल्लुफ़ नहीं करना, ये तुम्हारी बहन का घर है। सईदा भी अक्सर फरमाइश कर ही देती हैं, कभी फ्रूट चाट, कभी कबाब और कभी चिकन रोल। ये 2 ढाई घंटे से कम क्या ही बैठा करती थीं और ये दोनों लड़कियां उधर किचन में आकर अतिया और हदीजा को मेन्यू लिखवा जाती। चलो आज रेस कोर्स चलते हैं। अंदर आकर जिब्रान बानो आसिया और सोनिया से कह रहा था, मगर आज हम कैसे जा सकते हैं? आज आसिया उदास होकर बोली, क्यों, आज पाँव में मेहंदी लगाई लगाई है? नहीं, वो सईदा आपा जो आ रही हैं, एक तो चाय के साथ इतना एहतमाम करना होगा, फिर अक्सर फुप्पो उन्हें खाने पर भी रोक लेती हैं। भाई इसीलिए तो तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ, वरना फिर मेरे पास फजूल उड़ाने को पैसे थोड़ी होते हैं। फुप्पो बुरा मानेंगी। लड़कियां जाना भी चाह रही थी और डर भी रही थी। कह देना जिब्रान जबरदस्ती लेकर गया था, और ये मैं बता दूं कि आज मैं आप सबको लेकर जरूर जाऊंगा। आज बाजी सईदा को पता चल जाना चाहिए कि इतरत और सोबिया किस कदर सुगढ़ हैं। चलिए अम्मी क्या सोच रही हैं, और ताई जान को भी बुलवाइए। बेटा तुम बच्चे जाओ, हमारा भला क्या काम। हाँ हम जाएं, आप बाद में किचन सुधारेंगी। सच अम्मी, कभी कभी मुझे आपकी बुज़दिली पर बड़ा सख्त गुस्सा आता है। तुम अभी ना समझो, बच्चे हो, तुम्हारी पप्पो अब्बा जान से शिकायत कर देंगी। ठीक है, कोई भी ना चाहे, मैं ही पागल हूँ जो आप लोगों से हमदर्दी करने बैठ जाता हूँ। वो खफा होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पता नहीं ये लड़का समझौता करना कब सीखेगा। अम्मी आपको ये अच्छा लगेगा कि भाई भी समझौता कर ले, चुपचाप सब कुछ सहता चला जाए? सोनिया के सवाल पर उनका सर आप नफी में हिल गया। फिर कहने लगी, जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक इसे हालात को सामने रख कर बात करनी चाहिए। नहीं चची, एक जिब्रान ही तो है जिसके दम से हम भी कोई अच्छी उम्मीद बांधे हुए हैं, वरना आसिफ भाई को सबके सामने सर झुकाकर क्या मिला? और जिब्रान तो इस घर के करता धरता वाकई घबराते हैं। मैं तो अक्सर सोचती हूँ काश मुझ में भी थोड़ी दलेरी होती, मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक चल सकती। आसिया की बात के जवाब में अतिया कुछ नहीं बोली, बस गहरी सांस खींच कर रह गई। चची क्यों ना हम लोग कहीं और चलें? आप अम्मी और अब तो आसिफ भाई और जिब्रान भी हैं, हम सब मेहनत कर लेंगे, अपनी मर्जी से जीने का लुत्फ लुत्फ तो उठाएंगे। इससे पहले के जवाब में वो कुछ कहती ही जिब्रान चला आया और उसके पीछे ही इतरत भी आ गई। अम्मी कह रही हैं अम्मी कह रही हैं चाय बना लो, समोसे बना लो, कुछ शामी कबाब भी होने चाहिए, केक बाजार से मंगवा लेना। उसका जुमला पूरा होने से पहले जिब्रान बोल उठा। वो कुछ देर हैरत से उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हें कैसे पता चला? तुम यकीनन हमारी बातें सुन रहे थे। हमारे पास फालतू लोगों की बेसरोपा बातें सुनने का वक्त नहीं, हम लोग सब तो रेस कोर्स जा रहे हैं। कुछ लहक कर इतला दी गई। रेस कोर्स किसकी इजाजत से? और आज तो बिल्कुल नहीं जा सकते, घर में मेहमान आ रहे हैं, इतना काम पड़ा है। जिसके मेहमान हैं वो करें खिदमतें, जब हमारा कोई मिलने वाला आता है तब तुम लोग कितना हाथ बटाती हो। इतरत जिब्रान की जिद से वाकिफ थी, सचमुच परेशान हो गई कि इतना कुछ बनाना उन बहनों की बस की बात ही कहाँ थी। फिर सईदा बाजी और उनकी साहबजादियाँ इतने मज़ेदार जायकों के खाने खाकर जाती थीं। रशीदा फुप्पो डिटाई से झूठ बोलती, ये सब इतरत और सोबिया ने बनाया है, और आज जब ये दोनों वाकई कुछ बनाएंगी तो तब तो हलक से उतारना मुश्किल होगा। तुम बात सुनो मेरी, कल चले जाना, मैं नाना अब्बा से कुछ रकम भी ले लूंगी, मिलकर चलेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। पैसे की परवाह किसे है? मेरा 5 लाख का बॉन्ड निकला है, इसी खुशी में तो उन्हें लेकर जा रहा हूँ। 5 लाख तुम्हारे पास? इतरत की तो आंखें फैल गईं, भूल ही गई क्या कहने आई थी और जिब्रान ने क्या जवाब दिया था। बोली, मुझे भी तो दिखाओ, घर में थोड़ी रखा है, चोरों डाकुओं का खतरा रहता है, और हमारे घर में ही बहुत से लोग लंका ढाने वाले हैं। ना समझते हुए इतरत ने इस बात में सर हिला दिया, फिर बोली, क्या करोगे इतने पैसों का? तुम कहो तो आधे तुम्हें दे दूं। जैसे मैं जानती नहीं कितने सही हो। ठीक कहा तुमने, और दुश्मनों को तो मैं एक धेला भी देने का रवादार नहीं। मैं दुश्मन हूँ? सिर्फ तुम नहीं, और भी बहुत से। क्या करोगे बताया नहीं? इतने पैसों में कोई बंगला, कोई महल, कोई फैक्ट्री शैक्ट्री तो लगाने से रहा। मामू हसन बहुत अमीर हो चुके हैं, मैंने कह दिया है अपने बिजनेस में खपा लें। अच्छा आप तुम बिजनेसमैन बन जाओगे? हसद उसके लहजे से अया होने लगा। बिल्कुल भाई, जलने वाले का मुंह काला। मेरे तो चिकने चिकने हाथ हमेशा से रहे हैं। अब हम रेस कोर्स जा रहे हैं, फिर फूड स्ट्रीट जाएंगे, और अब तो ये ऐश रोजाना हुआ करेंगे।
तुम अपनी सईदा बाजी को किसी चाय के खोखे का रास्ता दिखा दो, बल्कि उनका खाता खुलवा दो, पैसे मैं दे दिया करूंगा। अल्लाह की शान है, चूंटी के भी पर निकल आए हैं। हसद और जलन के मारे उसका बुरा हाल था। माँ और बहन भाइयों को ये बुरी खबर सुनाने चली गई। हाय, अगर सचमुच बॉन्ड निकल आता तो कितना मजा आता। उसके जाने के बाद सोनिया हसरत से कह रही थी, फिक्र ना करो, अल्लाह हमें बहुत देगा। वो मुतमईन और यकीन थी। पता नहीं कब देगा। सोनिया बेजार दिखाई देने लगी। ऐसे नहीं कहते, आसिया ने टोका। और क्या, आप तो अच्छे दिन आया ही चाहते हैं। जिब्रान वाकई बहुत बाएतमाद था। सोनिया को भी यकीन करना पड़ा। तुम लोगों को नाना अब्बा बुला रहे हैं। अभी रेस कोर्स जाने की तैयारी भी शुरू नहीं की थी कि रेहान चला आया, और आज उसने बहुत खोजती निगाहों से जिब्रान का जायजा भी लिया था। रेहान जिब्रान ने मुस्कुरा कर आसिया और सोनिया को देखा, फिर हाथ हिलाता रेहान के साथ चल पड़ा। वाकई बॉन्ड निकला है, वो राजदारी से पूछ रहा था। ये बड़े अब्बा हुजूर ने बेवक्त याद करके हमें तकलीफ क्यों दी है? अच्छा, तो अब नाना को तुम्हें बुलाने से पहले वक्त लेना होगा। फासला कोई इतना ज्यादा तो नहीं था। उन्हीं बातों में बड़े अब्बा के कमरे तक पहुंच गए। जी बड़े अब्बा, आपने याद किया था। उसने हाजरीन पर निगाह डाली। वहां पुप्पो, हालदा, चची, चचा, सदाकत और उन दोनों के तमाम बच्चे मौजूद थे। समझ गया। इतरत ने बात फैलाने में देर नहीं लगाई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दादा का चेहरा हमेशा की तरह संजीदा और आवाज में रोब था। पता नहीं आपने क्या सुन लिया और किसने सुना दिया। भूलपन से कहा गया। तुम्हारा बॉन्ड निकला, हमें बताया तक नहीं। अंदाज में गिला बहुत कम डांट नुमाया थी। वो चुप रहा और खाली नशिस्त की तलाश में पूरे कमरे में निगाह दौड़ाकर आखिर तपाई पर टिक गया। ऐसे गैर हो गए हम, एक घर में रहते आए हैं। तुम लोगों और हम अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया मैंने। मगर तुमने चचा को कभी अपना समझा ही नहीं। कभी भूले से भी सर पर शफकत का हाथ ना रखने वाले चचा आज उसकी बेदनाई पर खफा थे। और तुम अपना पैसा उस कल के लौंडे अपने मामू हसन के नाम कर रही हो, जिसे पांव पर खड़े हुए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। अभी उम्र ही क्या है उसकी, और कारोबार का उसे भला क्या तजुर्बा। हम तो सोचते ही रहे कभी इतना पैसा इकट्ठा हो तो कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तुम्हारे चचा सरपरस्ती करें और तुम सब लड़के मेहनत करके माशरे में आला मकाम हासिल करो। बस हमारा फैसला है, कल ही रकम लेकर आओ। बड़े अब्बा हुजूर का अंदाज अटल था। उसने सर उठाया और बोला, बताने वाले ने शायद जज्बात में आकर गलत बता दिया। मैंने 5 करोड़ नहीं, 5 लाख का झूठ बोला था। झूठ बोला था? कई आवाजें उभरी। तो और क्या, वो तो मैं इतरत से मजाक कर रहा था। वो असल में आज पुप्पो की दोस्त सईदा आपा तशरीफ ला रही हैं। उनके एजाज में खाने पकाती हैं। ताई और अम्मी, साथ में मेरी बहनें। और पुप्पो गलत बयानी करती हैं कि ये सब सोबिया और इतरत ने बनाए हैं। मैंने सोचा हम चलते हैं सैर करने। आज वो वाकई सोबिया और इतरत के हाथ के खा कर जाएं, और यहाँ कदम रखने से हमेशा के लिए तौबा करके हमारा बजट खराब होने से बचा लें। तुम्हें पता है झूठ बोलने से इस्लाम मना फरमाता है। ये कितनी बड़ी जलील हरकत है। गुस्से और खिफ्त से बड़े अब्बा का बुरा हाल था। मैं अकेला थोड़ी बोलता हूँ। अभी देखिएगा, सईदा आपा के आगे चाय और दूसरी चीजें रखते हुए पुप्पो कहेंगे ये सब सोबिया और इतरत ने बनाए हैं। अब्बा, अब्बा जी, ये हद से ज्यादा बदतमीज और बेलगाम होता जा रहा है। आपके सुल्तान का फोन आए तो बताएं इसे। उसके लाल ने हमारा जीना हराम कर रखा है। सुल्तान तो जो करेगा बाद में करेगा। मैं तुम्हें बता दूं बरखुरदार, ऐसे बेहुदा लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। घर से निकाल दूंगा तो दर दर की ठोकरें खाओगे। 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। और बहुत पढ़ लिया तुमने, अब बस करो ये पढ़ाइयाँ। अपना कमाओ, अपना खाओ। मैंने तो तकरीबन 4 साल से अपनी पढ़ाई का खर्च आपसे लेना छोड़ रखा है। मैं ये खर्च खुद अपनी मेहनत की कमाई से अदा कर रहा हूँ। मेहनत की कमाई या यारी मकारी से उड़ाई रकम से? तुम जैसे ही खानदान का नाम डिबोते हैं। और मुझ पर ये रोब मत डालो। ऐसे ही हिम्मत और गैरत वाले हो तो अपनी माँ बहन का खर्च भी उठाओ। मैं भी तो देखूं कितना दम खम है तुम में। कहने को उसके पास बहुत कुछ था, मगर बहुत अरसा पहले ही उसने बाप के पैसे पर अपना हक जताना छोड़ दिया था। और उसने कभी बाप से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। बड़े अब्बा और फुप्पो सख्त गुस्से में दिखाई दे रहे थे। जिब्रान को इस कदर सख्त सुस्त कहा गया, उस वजह से खालदा बेगम के चेहरे पर सुकून और हल्की सी मुस्कुराहट थी। और खुद जिब्रान यूं बैठा था जैसे ये सब उसे नहीं किसी और को सुनाया गया है। आहिस्ता आहिस्ता सब उठने लगे। वो भी बाहर आया और बुलंद आवाज में इतने से बोला, असल में मेरा बॉन्ड तो निकला है, मगर बड़े अब्बा हुजूर के सामने जिक्र करना मुनासिब नहीं था। इतरत गुस्से और खिफ्त से हूं कहकर आगे बढ़ गई। खबीस हो तुम पूरे, आसिर ने हंसकर कहा। फिर माँ को आता देखकर आगे बढ़ गया। किचन में आया तो यहाँ पुप्पो के हुक्म के मुताबिक तैयारी का आगाज हो चुका था। भानो देखते ही बोली, बड़े अब्बा ने क्यों बुलाया था? कह रहे थे सूरतिया देखे बिना ना ही चैन। तुम बताओ क्या बना रही हो? समोसे, और मैंने जानबूझकर नमक बहुत तेज कर दिया है। शाबाश, बॉन्ड निकल आए तो फिर इनाम दूंगा। और आसिया बाजी, आप क्या कर रही हैं? अंडों का हलवा बना रही हूँ। अच्छा, चीनी बराए नाम डालिएगा। ना भाई, मुझे बातें सुनने बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। भाभी नजर नहीं आ रही? उसने राहत के बारे में पूछा। छोटे को बुखार है, अभी अभी अम्मी के साथ उसे डॉक्टर सफदर के क्लिनिक पर लेकर गई हैं।
आसिफ भाई अभी तक नहीं आए। नहीं, अल्लाह खैर करे। यही तो फिक्र लगी हुई है, वो तो इस वक्त तक आ जाया करते हैं। दोनों बहनें आसिफ की वजह से काफी फिक्रमंद थी। आ जाएंगे, देर सवेर तो हो जाती है। सोनिया, तुम क्या कर रही हो? भाई, मैंने आपके नक्शे कदम पर चलने का फैसला कर लिया है। सोचा है आज उनके मेहमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगी। शाबाश, सद शुक्र कि मुझे एक शागिर्द तो मुयस्सर आया। अभी ये बातें हो रही थी कि पुप्पो मायने के लिए तशरीफ ले आई। जिब्रान को यहाँ देख कर ठिठकी, मगर अब अंदर तो आ ही चुकी थी। वापस क्या होती, उन तीनों को देखा और बोली, ये राहत कहाँ है? काम के वक्त हमेशा ही गायब होती है। बबलू को बुखार है, वो और अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं, की तरफ गई हैं। हाँ, उनका जाना तो बहुत ज़रूरी था, घर में इतने लड़के मौजूद हैं, किसी से कहा नहीं जा सकता था क्या। और सोनिया, तुम बैठी चम्मच प्लेट से क्या खेल रही हो? मेरे सर में दर्द है, मैं तो अपने लिए चाय बनाने आई थी। अगर जिब्रान यहाँ मौजूद ना होता तो सोनिया को बेबहाव की पड़ती, मगर वो इस लड़के की बदलिहाजी से खौफजदा सिर्फ सोनिया को घूर कर रह गई। मानो ये समोसे तो तुम उनके आने पर ही तलना शुरू करोगी। ऐसा करो, रात के खाने के लिए कबाबों का कीमा तैयार कर लो। कीमा तो नहीं है, गोश्त तो मौजूद है, कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। क्या वो लोग खाना खा कर जाएंगे? बानो ने जानबूझकर से शदीद उकताहट का मुजाहरा किया। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? लड़कों का किचन में क्या काम, और घर के काम लड़कियों को ही करने होते हैं। लड़कियों, जल्दी करो और रात में चिकन कढ़ाई ज़रूर बना लेना। आज उनके यहाँ से 3-4 लोग आएंगे। वो जिब्रान को कुछ कहने का मौका दिए बगैर बोलते हुए किचन से चले गईं। चलो करो अब काम। मेरी बहादुर बहन ने तो बीमारी की दास्तान सुनाकर जान बचा ली है। जिब्रान, चले जाओ यहाँ से, मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है। ऐसा ना हो तुम्हारा ही सर तोड़ दूं। आसिया सख्त बेजार थी। बुज़दिनों का यही काम है, अब क्या करें हम? तुम तो लड़के हो, जुबान चला सकते हो, हर धर्मी दिखा सकते हो, मगर हमारी मजबूरी है, हम ऐसा नहीं कर सकते। भाई देखो किसका फ़ोन है। सोनिया के मुतवज्जे करने पर वो भी मुतवज्जे हुआ और किचन से चला गया। फ़ोन हॉस्पिटल से आसिफ के दोस्त का था। खबर अच्छी नहीं थी। वो बता रहा था आसिफ का शदीद एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल का नाम और दीगर मालूमात नोट करने के बाद वो गुमसुम सा कमरे में खड़ा था। किसे बताए और कैसे बताए? आसिया, बानो, ताई जान और वो सबसे बढ़कर राहत भाभी और उनके छोटे छोटे बच्चे। या अल्लाह, अपना रहम फरमा, आसिफ भाई को कुछ ना हो। अभी वो वहीं था कि वो लोग डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गई। तुम यूं खड़े क्या सोच रहे हो? राहत ने गहरी सोच में डूबे जिब्रान को देखकर पूछा। ताई जान, आप दोनों के पास इस वक्त कितने पैसे होंगे? मेरे पास तो जो था आज बच्चे की दवाई पर खर्च हो गया, और मेरे पास 2-2.5 हज़ार होंगे। आसिया बानो के जहेज के लिए वाटर सेट खरीदने का सोच रही थी। तुम्हें चाहिए तो ले लो। नहीं, वो बात ये है कि आसिफ भाई का मामूली से एक्सीडेंट हो गया है, थोड़े पैसे चाहिए थे। उसे इतना ही कहा था कि दोनों ने रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर यहाँ से नज़दीक ही किचन से तीनों लड़कियां और अपने कमरे से अतिया इधर ही चली आईं। जब यह खबर उनके इल्म में आई तो उन सब की कैफियत भी मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे हसन ने चंद रोज़ पहले ही मनी ऑर्डर भेजा था, 7,000 है मेरे पास। अम्मी फ़ौरन अपने कमरे में वापस चली गईं। जिब्रान दादा और लोगों को इतला देने घर के दूसरे हिस्से में आ गया। कुछ देर बाद जिब्रान और आसिफ हॉस्पिटल चले गए। आसिफ की हालत उनके अंदाजे से ज़्यादा ख़राब थी। एक टांग तो डॉक्टरों के मुताबिक शदीद मुतासिर हुई थी। अब ज़िंदगी का क्या ढंग होगा? आसिफ भाई मामूली मुलाजिम थे, मगर अपने बीवी बच्चों माँ बहनों का खर्च तो उठा रहे थे, और अब ये सहारा भी ना रहेगा। सारे तूफान इन्हीं के लिए क्यों, जो पहले ही मौजों से खेल रहे हैं। वो कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर लगाते ऐसी ही सोचों का शिकार था। जिंदगी में ऐसे किसी हादसे के बारे में कब सोचा था? थोड़ी देर में घर के बाकी अफराद भी पहुंच गए। हर कोई उसी से आसिफ की खैरियत पूछ रहा था। जवाब इस बात में चाहता था वो क्या कहे, कैसे उनकी आस तोड़ दे और किस तरह तसल्ली दे। जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा, उसके बारे में खदीजा बेगम ने कब सोचा था? यही बेटा तो सहारा था, और अब वो उनके सामने बिस्तर पर माजूर पड़ा था। जिस्मानी तौर पर अधूरा होकर आसिफ बिखर गया था। तसल्ली दिलासा उसके लिए झूठ था, और यह हकीकत थी कि वो एक टांग से माजूर हो चुका है और उसकी मुलाजमत जाती रही थी। इन चंद दिनों में जिब्रान ने अपनों का जो रवैया देखा था वो दंग रह गया था। ऐसे हालात में तो दिल गैर की मदद के लिए भी आमादा हो जाता है, मगर यहाँ चंद हज़ार ताई जान की हथेली पर रख कर कहा गया था, हम इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, और ये रकम हॉस्पिटल में उठने वाले खर्चात के लिए कतई नाकाफ़ी थी। वो रो पड़ी थी, और बड़ी फूफो ने कहा था, मांगने तो तुम यूं खड़ी हो गई हो जैसे तुम्हारा बेटा सारी कमाई मेरी हथेली पर रखता रहा है, कभी एक ढेला भी नहीं दिया उसने। ये तो हमारी शराफत है कि ना तो कभी तुम लोगों से इस छत का किराया मांगा, ना ही ये हिसाब लगाया कि तुम लोगों का खाना पीना किस खाते में है। जवाब में ये ना कह सकी, तुम्हारे दोनों बेटे कई साल से आवारागर्दी कर रहे हैं, तुम भी छत का किराया नहीं देती, खाना पीना तुम्हारा भी मुफ्त है।
बस सर झुकाकर वापस आ गईं और जिब्रान को साथ लगाकर रोने लगीं। फिर मुट्ठी में दबे ये पैसे उसके हाथ पर रख दिए। फ़िक्र ना करें, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा। वो खुद बेहद परेशान था, मगर उन्हें दिलासा देना ज़रूरी था। इन्हीं दिनों हसन और सजादा लाहौर आ गए। सारी सूरत-ए-हाल जानने के बाद हसन ने हॉस्पिटल के बिल खुद अदा किए थे और आसिफ को घर ले आए थे। ज़िंदगी इतनी कठिन और बेज़ार-कुन हो गई थी कि वक़्त काटे नहीं करता था। आसिया और बानो सोचतीं, काश वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेती तो कहीं जॉब कर लेती, मगर उनके तालीमी अखराजात उठाने को पप्पू और दादा तैयार ही नहीं थे। लैला ने काफ़ी दिनों के बाद चक्कर लगाया। यहाँ का माहौल एकदम से बोर लगा। वो हालदा बेगम की तरफ चली गई और उधर ही उनके और पप्पो के बच्चों से गप्पें लगाती रही। ज़्यादा दिन ठहरी नहीं कि आजकल यहाँ फरमाइशों के मुताबिक खाना नहीं पक रहा था। खालदा बेगम और पप्पो ही खाना बना रही थीं, जो कि बस इसी काबिल होता कि शदीद भूख में ज़हर मार किया जा सके। खदीजा बेगम बेटे के गम में निढाल। यही हाल उनकी बेटियों का था और अतिया तो जब से भाई आया था घर में कम ही मिलती। उनके बहनोई ने यहीं करीब ही घर खरीदा था। हसन और सजाद उधर ही रह रहे थे। कुछ दिनों में अतिया की बहन और बच्चे भी आने वाले थे। अतिया घर को निगरानी में सेट करवा रही थी, बाकी का वक्त आसिफ की देखभाल में गुजारती। कुछ ऐसी ही मसरूफियात जिब्रान की थी। उस शाम जिब्रान उधर आया तो उसके साथ हसन भी चले आया और आसिफ से मिलने उसके कमरे में ही आ बैठे। क्या हाल है? हाथ मिलाने के बाद ये सवाल किया गया। आसिफ की आंखों में हरदम तैरते आंसू गालों पर आ गए और उसे रोता देख कर कमरे में मौजूद खवातीन भी रोने लगी। हिम्मत नहीं हारते, फिर आप अकेले तो नहीं, हम सब आपके साथ हैं। मैंने और जिब्रान ने ये फैसला किया है कि अपना बिजनेस स्टार्ट होते ही आपको ऑफिस में अच्छी सी सीट की पेशकश करेंगे। क्या ये सच है? आंखों में सवाल लिए बेयकीनी से जिब्रान की तरफ देखा। उसे मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और आसिफ की आंखों में एक बार फिर जिंदगी की चमक नजर आने लगी। हम सब मेहनत करेंगे, मुझे यकीन है कि आने वाला वक्त गुजरे कल से बहुत बेहतर होगा। हसन का अंदाज पूरे एतमाद और बहुत अपनायत लिए हुए था। बेटा, ये तुम्हारा हम सब पर बहुत बड़ा एहसान होगा। खदीजा बेगम मशकूर थी। नहीं आपा जान, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जी हाँ ताईजान, मामू की तारीफ की जाए तो ये मगरूर हो जाते हैं। और आसिया बाजी, आप इतनी जल्दी से अब आप जल्दी से अच्छी सी चाय बना कर लाएं, हम दोनों बहुत थके हुए हैं। मैं नहीं चाहती, वहाँ चची और फूफो मौजूद हैं। आसिया के खौफ पर हसन ने हैरान होकर उस बड़ी बड़ी आंखों वाली उस नाजुक सी लड़की को देखा, मगर बोले कुछ नहीं। मेरी बहादुर बहन किधर है? वो बना कर लाएगी। मैं इधर हूँ भाई, अभी लाती हूँ। सोनिया झट से उठ खड़ी हुई। भांजी, सिर्फ चाय नहीं, साथ में कुछ खाने को भी होना चाहिए। हसन के कहने पर जिब्रान ने हाथ उसके छाने पर रखा और बोला, मामू ज्यादा मत फैले, वहाँ जो खवातीन मौजूद हैं वो वाकई बड़ी खूंखार है। जाओ जिब्रान, बाजार से कुछ ले आओ। बाजी, अगर बाजार जाने की हमें हिम्मत होती तो रोना किस बात का था? हम दोनों वाकई बहुत थके हुए हैं। कुछ सोचकर सोनिया के पीछे पीछे बानो भी किचन में चली गई। जब ये किचन में आई, सोनिया चाय बनाने की तैयारी कर रही थी और गनीमत ये कि किचन में सिर्फ सोबिया और अनीला मौजूद चावल बॉयल करने में मसरूफ थी। तुम्हारे मामू आए हैं। अनीला चूंकि हसन के शानदार शरापे सरापे की एक झलक देख चुकी थी, इसलिए इसीलिए इश्तियाक से पूछ रही थी। सोनिया ने सर इस बात में हिलाने पर इत्तेफाक किया। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सोनिया मसरूफ से अंदाज में बोली थी। कुछ भी नहीं, और ठाठ बाट इतने हैं, ये गाड़ी भी तो उन्हीं की है होगी। अच्छा, गाड़ी पर आए हैं? मुझे नहीं मालूम। सोनिया को उसका यूं कुरेदना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चाय का पानी चूल्हे पर रखा और बर्तन निकालने लगी। इतनी देर में बानो फ्रिज से आटा और रात का बचा खुचा कीमे का साला निकाल कर अब उसमें हरी मिर्चें और जीरा मिलाने लगी। कुछ सोचकर अनीला किचन में से चली गई और जब ये लोग चाय के साथ कीमे के पराठे और टमाटर की चटनी लेकर कमरे में आई, वो वहाँ मौजूद हसन के साथ बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। बानो ने हैरत से देखा जबकि सोनिया सर झटक कर चाय बनाने लगी। साथ में क्या बना लिया? बड़ी खुशबू आ रही है। आसिफ के साथ बेड पर दराज जिब्रान उठ बैठा। थोड़ा कीमा पराठे बनाए हैं। जियो बानो बाजी, काश में कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग होता और आपको शानदार सी दुआ से नवाजता। उसे ये कहते हुए प्लेट अपनी जानिब खिसका ली। ध्यान से बच्चे, ये हम दोनों के लिए है। आसिफ से बातें करते हसन ने याद दिलाया। फिक्र ना करें मामू, अभी चटनी और चाय बाकी है। बस यही खराबी है तुम में, जहाँ खाने की कोई चीज़ देखी वहीं दोस्ती और रिश्ता भूल कर नदीदे बन गए। आप अब यहीं रहेंगे? अनीला ने मुस्कुरा कर अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अल्लाह ना करे जो यहाँ रहते हैं वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर सुबह शाम गिरिया करते हैं। आप इन्हें तो यहाँ रखने की बात ना करें। तुमसे नहीं पूछा, वो जिब्रान की बात पर खिसिया कर बोली। मामू इस वक्त खाने में मसरूफ़ हैं, खाते हुए किसी और की तरफ मुतवज्जे होना गुनाह ख्याल करते हैं। हाँ, खासकर जब भांजा मेरे आस-पास मौजूद हो। जानता हूँ ना, ये मेरी गफलत से फ़ायदा उठाने को तैयार रहता है। अच्छा अनीला, अब तुम जाओ, हम कुछ काम की बातें कर लें। क्यों? मैं तुम्हें क्या कहती हूँ?
उसका इरादा मज़ीद बैठने का था, मगर उसी वक़्त खालदा बेगम उसे आवाज़ें देती इधर आ गईं। शाबाश, तुम यहाँ बैठी हो। अब अपनी बेटी को भी एक एहसास नहीं रहा कि माँ बीमार है, सुबह से शाम तक काम करती है। सभी समझ गए ये तंज़ यहाँ मौजूद ख़वातीन पर हुआ है, मगर किसी के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के आसार भला कैसे आ सकते थे कि आजकल तो आसिफ़ की वजह से ये लोग काम छोड़कर उसके पास आ बैठती थीं, वरना उससे पहले हर हाल में घर का काम-काज उनकी ज़िम्मेदारी रहा था। देखा चची, काम की आदत ना रहे तो फिर 2 दिन भी काम करना कितना बार बन जाता है। जिब्रान की बात ने जल्दी पर तेल का काम किया। तेजी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? हर किसी के साथ बदतमीजी करना तुमने अपने लिए जरूरी समझ लिया है? ये मैं नहीं, सब कहते हैं। वो बड़े इत्मीनान से चाय पीते हुए बता रहा था। सब कौन? नाम बताओ ना। लड़ने की तैयारी जैसे अभी से पकड़ते हुए एक हाथ कमर पर टिका लिया था। मेरी भला उन बेचारों से कौन सी दुश्मनी निकलती है? वो मुस्कुराया था। अनीला हसन के सामने माँ के इस अंदाज पर जिजबिज होती उठ खड़ी हुई और हाथ पकड़कर उन्हें भी बाहर ले आई। उन लोगों के जाते ही सोनिया और बानो हंसने लगी। बदतमीज बड़ों का अदब करना सीखो, जिब्रान ने नसीहत की। कुछ देर के बाद जब अतिया हसन के साथ बड़े अब्बा के कमरे में आई तो वहाँ उनके साथ साथ फुप्पो और चचा भी मौजूद थे। ये मेरा भाई है हसन, सलाम करने आया है। वो बड़ी फुप्पो की मौजूदगी में कुछ घबरा कर कुछ सहम कर तारुफ करवा रही थी। हाँ, पता चला था, हम तो 2 घंटे से मुंतजिर थे कि तुम हमें भी मिलवाने के लिए बुलवाओगी, मगर किसी ने इस काबिल कब समझा है। आपा, मैं तो खुद आपकी। मगर हसन ने बहन की बात मुकम्मल नहीं होने दी। चुपके से हाथ दबाकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया और दादा को सलाम करके उनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। ठीक है मियाँ, खुदा जिस हाल में भी रखे। तुम इतने साल के बाद कहाँ से निकल आए? अंदाज हद दर्जा खुश्क और तंज भरा था। हसन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सुना है इधर ही कारोबार करने का सोच रहे हो। क्या कारोबार करोगे? कोई तजुर्बा भी है? और तुम्हारे पास तो कोई जद्दी पुश्ती जायदादें भी नहीं जिन्हें बेचकर कारोबार में रुपया लगा सको। बड़े अब्बा का अंदाज सरासर तो ही नामेज था, मगर वो बहुत तहम्मुल से बात सुनने और जवाब देने वालों में से था। बोला, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूंगा जिसमें बहुत ज्यादा सरमाए की जरूरत ना पड़े। फिर भी पता तो चले, आखिर करोगे क्या? पुप्पो को उसकी शख्सियत और लिबास हसद में मुब्तला कर रहा था। बस चंद रोज तक सब सामने आ जाएगा। अच्छा मियाँ, नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। जिब्रान के लिए भी कुछ सोचो, महंगाई बहुत है। हम भी इतने बड़े कुंबे का हर्ष उठाते अब थक गए हैं। बहुत पढ़ लिया उसने, और हमारे मना करने के बावजूद जिद में आकर पढ़ता रहा। अब क्या फायदा हुआ? कौन सा कहीं नौकरी मिल गई है? अच्छा, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। उनकी बातें उससे तो क्या किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती थी। वो कमरे से निकला। अतिया पीछे जाने लगी तो पुप्पो ने आवाज देकर ठहरने को कहा। फिर बोली, तुम्हें भी मालूम है जवान बच्चियों वाला घर है और तुम अपने भाई को हर तरफ घुमा फिरा रही हो। ये दस्तूर हमारे घराने का नहीं, आइंदा याद रखना। अगर इज़हार की ज़रूरत होती तो वो ज़रूर याद दिलाती। इसी घर में खालदा के भाई और रिश्तेदार लड़के खुल्लम खुल्ला आते थे। उनके अलावा छोटी नंद के ससुराली भी लड़कियों के दरमियान बहटे कहके लगाया करते थे। उन्होंने छोटी बहन को कभी नहीं याद दिलाया कि ये जवान लड़कियों वाला घर है, मगर वो कुछ भी कह नहीं सकी, चुपचाप बाहर निकल गईं। अम्मी, आपको फरहान भाई बुला रहे हैं। इतरत ने आकर बड़ी फूफो को भाई का पैगाम दिया। वो बाप से ये कहकर कि अब्बा मैं फिर आऊंगी, आपसे बड़ी ज़रूरी बातें करना करना है, बेटी के साथ चल पड़ी। बड़ा बेटा फरहान मुंतजिर बैठा था। वो आम से घरेलू हुलिये में था, जबकि इस वक्त वो घर पर बहुत कम ही हुआ करता था। उनके दोनों बेटे ही सैर सपाटों के शौकीन थे और लड़कियों से दोस्ती उनका महबूब मशगला था। बस एक ही आदत थी जो उन्हें नापसंद थी, फिक्र ही रहती किसी दिन किसी चंडाल को लाल कपड़े पहनाकर घर ना ले आए और तारुफ ये कहकर करवाएं, अम्मी जान इनसे मिलिए, ये आपकी बहू है। अम्मी जान, आप कह रही थी इधर अपने वाले हिस्से में गीजर लगवाना है। हाँ बेटा, महीना भर तो हो गया मुझे बकते झकते, मगर तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगती अम्मी। और तो किसी की मजाल नहीं जो कुछ कहे, मगर ये सखावत मामू उनका मनहूस सूरत हाजिर हमारी हर बात पर एतराज़ करना फर्ज समझते हैं। इतरत ने मुंह बनाकर याद दिलाया, ए जो चलता है जलता जला करे, और अगर उन्हें भी गर्म पानी के इस्तेमाल का शौक है तो लगवा लें, आखिर को सखावत कमाता है। वो बेपरवाह थी। मुझे चेक साइन करके दे दे, मैं बाजार से कीमत मालूम करके रकम खुद लिख लूंगा। फरहान के कहने पर उन्होंने इस बात में सर हिलाया और चेक बुक लाने के लिए इतरत को भेज दिया। कब तक लगेगा? सर्दियां भी बस आया ही चाहती हैं, जल्दी लग जाएगा। फरहान कुछ सोचने लगा था, उनकी आवाज़ पर संभल कर बैठ गया। इतरत चेक बुक लेकर आई। उन्होंने रकम का इंदराज किए बगैर दस्तखत करके चेक बेटे को थमा दिया। इस वक्त तो बैंक बंद होते हैं, कल सुबह जाऊंगा। अम्मी, रेहान भाई कब वापस आएंगे कोयटा से? इतरत के पूछने पर उन्होंने उदासी से आह भरी और बोली, एक तो मुझे इन दोनों लड़कों की समझ में नहीं आती, चैन तो इनकी हड्डी में है ही नहीं। अब अगर कोई दोस्त चमन वगैरह जा रहा था तो तुम्हारा जाना क्या ज़रूरी था, मगर जिद करके चला गया है, रकम भी अच्छी खासी लेकर गया है।
अब मुझे फ़िक्र लगी है, दिल में गलत-सलत ख़्याल आते हैं। अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत के साथ वापस लाए। कितनी रकम लेकर गया है रेहान? इरफान के पूछने पर उन्होंने 40 के बजाय 14 बताना मुनासिब समझा और वो इतने पैसों का सुनकर भी भड़क उठा। मुझे तो कभी ना दिए आपने इतने पैसे। रेहान सैर सपाटों के लिए नहीं गया, कह रहा था बाहर का बड़ा माल आता है, गाड़ियों के पुर्जे बड़े सस्ते मिल जाते हैं, लेकर आएंगे और सब दोस्त मिलकर उधर बिजनेस करेंगे। उसने कह दिया, आपने मान लिया, मुझसे जिक्र तक नहीं किया, देख लीजिएगा सब लुटा कर आ जाएगा। इस वक्त तो मुझे अपने सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, खैरियत के साथ वापस आए, पैसे का क्या है, ये तो हाथ का मैल है। वैसे अम्मी जी, मैं कई बार सोचता हूँ ये आपके भाई सुल्तान मामू भी कि अजीब घामड़ इंसान है। नाना को हर माह कितने सालों से बाकायदगी से रकम भिजवा रहे हैं। अरे तो वो कौन सा अपनी जेब से भिजवा रहा है, बीवी के पहले शोहर की कमाई है। मगर अब जब भी फोन आता है कहता है सौतेले बच्चों को इस कदर प्यार से पाला, मगर सांप की औलाद सांप पे निकली, अब बड़े हो गए हैं, मुझे आंखें दिखाने लगे हैं, दोनों ही बेलगाम बेलिहाज, और मेरी सेहत और उम्र इस बात की इजाजत नहीं देती कि उनका मुकाबला कर सकूं। हाथ बहुत तंग रहने लगा है। फिर कहने लगा, अब तो सब बच्चे बड़े हो गए होंगे, अपने पाँव पर खड़े होंगे। अगर मैं पैसे ना भी भेजा करूँ तो आप लोगों का गुज़ारा हो जाएगा। मैंने कहा, भैया तुम्हें पाकिस्तान के हालात का क्या पता, यहाँ इस कदर महँगाई है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो पैसा तुम भेजते हो, उसमें तो अब्बा की दवाएँ और तुम्हारे बच्चों की फ़ीसें अदा करने के बाद इतना ही बचता है कि सोनिया की शादी के लिए ज़रा-ज़रा सा पसे अंदाज़ कर लूँ, और या फिर अतिया की बीमारी को देखते हुए उसका इलाज करवा लूँ। इतरत और फरमान हंसने लगे। वैसे मामू का दिल नहीं चाहता अपने बीवी बच्चों से तफसीली बात करने को। इतने साल बीत गए हैं, मैंने हमेशा यही कहा, अतिया तो तुम्हें भूल चुकी है, तुम्हारी दूसरी शादी को उसने कभी माफ नहीं किया, और बच्चे तुमसे शदीद नफरत करते हैं। अतिया वाकई सुल्तान की दूसरी शादी को कबूल नहीं कर पाई, फोन पर रस्मी बातचीत करती है, और जिब्रान को तुम जानते हो, एक बार बाप ने बहुत पहले डांट दिया था और कहा था, अब मेरे पैसे पर खामखा का हक मत जताओ, ये मैं अपने बाप को भेजता हूँ, मुझे इस तरह चाहे खर्च करें। बस उस रोज के बाद उस लड़के ने कभी सलाम दुआ के बाद दूसरी बात नहीं की सुल्तान से। और सोनिया तो है ही भाई की गुलाम, जैसे वो करेगा वैसे ही ये लड़की करेगी। हमें खैर हमें क्या, हमारे लिए तो यही हालात बेहतर है। अम्मी, वो आज जो अतिया आंटी के भाई आए थे, देखिए आपने, और उनकी गाड़ी की तो क्या ही बात थी। अच्छा, गाड़ी भी थी उसके पास? वो चौंकी, फिर कुछ सोच कर बोली, किसी दोस्त की लाया होगा। नहीं अम्मी, पर्सनैलिटी भी गजब की थी, यकीनन कहीं बड़ा हाथ मारा है मौसूफ ने। मारा होगा, हमें क्या, खुशी की बात तो ये है बाजी सईदा इस मर्तबा अपनी बेटियों के साथ साथ रिश्ते की बहनों को भी लेकर आई आई थी। उनके इतने चक्कर हम तो नहीं हो सकते। बस अब तो मैं इस इंतजार में हूँ कि जल्द ही वो बाकायदा प्याम डालें और मैं दोनों बहनों की शादी की तैयारी शुरू करूँ। दोनों की? हाँ तो और क्या, मुझे पूरा यकीन है वो अपने दोनों बेटों का रिश्ता तुम बहनों के लिए डालेंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस वक्त बाजी सईदा आए, अनीला वगैरह को इधर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कब बुलाते हैं, वो खुद ही चक्कर लगाती रहती हैं। बस किसी तरह बाहर से ही टाल दिया करो, बड़ी चालाक है ये दोनों भी, इस घर में कोई भी कम नहीं। ये तो मेरी अक्ल और जहानत है कि तुम लोग अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हो। अगला दिन भी मामूल की रूटीन के साथ ही शुरू हुआ था, मगर इख्तिताम रोज से मुख्तलिफ था। फरहान सुबह चेक लेकर घर से निकला था और अब तक वापसी नहीं हुई थी। जूं जूं टाइम गुजर रहा था, बड़ी फुप्पो की घबराहट और परेशानी में इजाफा हो रहा था। वो किसको फरहान का पता करने भेजती। रेहान अभी तक कोयटा से नहीं लौटा था। बाकी घर के दूसरे लोगों को ये बताना नहीं चाहती थी कि बेटा किस मकसद के लिए निकला था। जहां जहां भी उसके होने की उम्मीद हो सकती थी, वहां फोन करके पता कर चुकी थी। रात के 10 बजने को थे। एक दोस्त को इधर उधर से पता करने को कहा। उसने कुछ देर बाद फ़ोन किया और बोला, आंटी मुझे इल्म हुआ है, फरहान मुल्क से बाहर जाने का प्रोग्राम चंद दोस्तों के साथ मिलकर बना रहा था, और आज ये सारे ही लड़के अपने अपने घरों में मौजूद नहीं है। क्या उसने आपसे कुछ रकम ली है? हाँ, नहीं, वो सुबह चेक कैश करवाने को निकला था। उनकी आवाज़ लड़खड़ा गई। कितने का चेक था आंटी? बेटा मैंने तो बस साइन करके दे दिया था। असल में गीज़र खरीदना था घर के लिए। कहने लगा जितने में आता होगा इसी हिसाब से रकम लिख दूंगा। बस फिर आंटी हो गया सफाया। वैसे कितनी रकम थी? कुछ ज़्यादा नहीं। वो बता नहीं सकी। पूरे 19 लाख थे जो उन्होंने बड़ी अयारी से जमा किए थे। थूक निगल कर बोली, फरहान कहाँ जाना चाहता था, वो पहुंच तो जाएगा ना, और तुम्हें यकीन है कि वो बाहर गया है। उन लोगों का प्रोग्राम किसी भी यूरोपीय मुल्क में सेट होने का था। यहाँ से तो उन्हें उसे कराची जाना था, क्योंकि उन्हें जिसकी रहनुमाई में जाना है वो कराची में होता है। फिर उन सब का प्रोग्राम तुर्की के रास्ते आगे जाने का था। मैंने तो मना किया था कि ये रास्ता खासा खतरनाक है, मगर वो सब बहुत पुरजोश थे। कराची में वो जिसके पास गया है, मुझे उसका एड्रेस दे दो बेटा, अंदाज में फरियाद थी। आंटी उसका एड्रेस तो उसी ग्रुप के पास था जो बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं तो कुछ नहीं जानता। बेटा पता तो कर सकते हो। अच्छा फिर कल ही कुछ बता सकूंगा, अभी सुबह बैंक जाकर पता कर लीजिएगा।
वो रात उन्होंने कैसे काटी ये वही जानती थीं, कैसे-कैसे ये रकम जोड़ी जोड़ी थी, क्या-क्या मंसूबे बाँधे थे, ज़मीन तो अपने नाम करवा ली थी, सोचा था 1-2 अच्छे से कमरे मज़ीद डालूँगी, बाकी के पैसे से लड़कियों के ब्याह करूँगी, लड़कों को मालदार घराने में ब्याहूँगी और ऐश करूँगी, मगर फरहान ने सारे ख्वाब मलिया मेट कर दिए। वो सब कुछ ले गया था और फिर उसका अता-पता भी नहीं मिल रहा था। रेहान कोयटा से आया, सारी बात का इल्म होने पर पहले तो माँ पर बिगड़ा कि इतनी रकम जमा कर रखी थी और हमें बताया तक नहीं। जब भी हमने माँगी साफ कह दिया मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। अरे कमबख्तों तुम लोगों के लिए ही तो जमा कर रखे थे। वो सब ले उड़ा। उनके उतरे चेहरे बात ना भी बताते तो भी ज़ाहिर कर रहे थे। आखिरकार भाइयों को सब बताकर फरहान का आता पता मालूम करने की दरख्वास्त करना पड़ी। बात फैल गई, सबको पता चला वो 19 लाख जोड़े बैठी थी। वो बातें बनी, हस्बे तौफीक सभी ने शर्मिंदा किया। 2 हफ्ते बाद पता चला फरहान और उसका ग्रुप पकड़ा गया था। अब यूनान की किसी जेल में था। माँ बेटियों ने खूब वावेला किया मगर यहाँ किसी को हमदर्दी नहीं थी। यहाँ तक कि वो हालदा बेगम जो हमेशा उनका दम भरती आई थी, अब वो भी तानों पर उतर रही थी। भाई अजीब मशकूक नजरों से घूरते थे, जैसे उन्हें यकीन हो वो यूं ही ड्रामा कर रही हैं, अभी बहुत कुछ उनके पल्ले बाकी है। पर वो अपना सोग मनाती रहीं, कमरे से भी कम निकलती और इधर अतिया की बहन अकीला आ गई। घर बहुत बड़ा नहीं मगर तरीके सलीके का बना हुआ और जदीद सहूलतों से आरास्ता था। आतिया और सोनिया के साथ साथ बानो, आसिया और राहत भी घर सेट करने में और हाथ बटाने उनके यहाँ जाती रहीं। जिब्रान मामू के साथ बिजनेस सेट करने में मसरूफ हो गया और राहत ने अपने शोहर की इजाज़त से दोबारा स्कूल में जॉब कर ली। वो ये जॉब तब भी करना चाहती थी जब आसिफ सेहतमंद था, मगर बड़ी फूफो ने ये कहकर शदीद मुखालफत की थी, हम अपने घराने की बहू की ये आज़ाद ख्याली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ये अपना कमाएगी, कल बाकी आने वाली भी उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए मर्जी और मनमानी की जिंदगी गुजारना चाहेंगी। बड़े अब्बा को भी मुखालिफ बना दिया और उन्होंने राहत को सख्ती से मना कर दिया था, मगर अब हसन और जिब्रान के समझाने पर उसने किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। शोहर और सास दोनों को उस पर एतमाद था, दोनों की तायद हासिल थी, यही काफी था। अकीला अपनी बेटी मारूख और दोनों छोटे बेटों के हमरा कई बार उधर आई, मगर अतिया ने घर के करता धरताओं के डर से बाकायदा चाय या खाने पर अब तक उन्हें मदऊ नहीं किया था। जिब्रान को पता चला तो उस बात को बहुत गलत गलत करार देते हुए उसी रोज खाला की फैमिली को चाय पर बुला लिया। किचन में हासी सरगर्मी रही और उसी बात से चौंक कर बड़ी फूफी और लड़कियां भी अपने कमरों से बाहर आ गईं। अब तो खालदा बेगम और उनकी बेटियों से भी ताल्लुकात कशीदा थे, वरना सूरत हाल इल्म में आ जाती। पता चला अतिया के मैके वाले हैं, वहीं चेहरे का जाविया बिगड़ गया। इतनी महंगाई और नए नए खर्चे, यहाँ से वहां मेज पर फैले लिफाफों को देखकर पारा हाई हो गया। जिब्रान फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था, उनकी झुंझलाहट भरी आवाज सुन ली और बोला, आप ये बताएं, आपकी जेब से कितने निकलवाए हैं हमने? देखो लड़के, मेरे मुंह ना लगो, किसी की जेब से भी गए हों, पैसे का जिया तो हुआ है ना। ये रकम मुझे मेरे मामू ने दी थी, वैसे 18-19 लाख से तो कम ही जिया हुआ है। बहन को इशारा करके मायने खेज अंदाज में जताया। सोनिया खी करके हंसने लगी। उन्होंने मेज पर धरी प्लेट फर्श पर मारकर चिकनाचूर कर दी और ऊंची आवाज में दोनों को डांटने लगी, मगर किसी ने जरा भी जो असर लिया हो। आखिर जिब्रान ने इतना कहा, जाए जाकर आराम करें, आपका सूरज गुरूब हो रहा है, आने दे अपने बाप का फोन, सब बताऊंगी। मुंह बिगाड़ कर धमकी दी। सुनकर शाने उचकाए और बोला, अब्बा परदेश में बैठे क्या कर लेंगे, एवं खामखा के ड्रामों में मैं नहीं आता। चाय पर हसन और सज्जाद भी मौजूद थे। जो ही अनीला को हसन की आमद का पता चला, माँ से चुप कर चली आई और इन सब में बड़ी घुल मिल कर बैठी रही। मारूफ ने कॉलेज में 3rd ईयर में एडमिशन लिया था। अनीला भी 3 साल पहले यहीं पढ़ा करती थी और मारूफ से बड़ी मोहब्बत से कह रही थी, घबराओ नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी और टीचर्स से तारुफ करवाऊंगी। मारूफ कुछ आसिया ही की फितरत वाली खामोश और शर्मीली लड़की थी। अभी उम्र भी कम थी और मिजाज में यकीनन सादगी भी ज़रूरत से ज़्यादा थी, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि अनिला ने 2-3 बार कुछ हसद और रश्क के जज्बात के साथ उसे देखा। चाय बानो और सोनिया ने लॉन में लगाई और सबको बुलाने के लिए कमरे में आई। तब भी अनिला को ये देखकर हैरत हुई। मारूफ बहुत धीरे धीरे और संभल संभल कर चलती है, जैसे उसे गिर पड़ने का खदशा हो। हसन का रवैया अपनी भांजी के साथ बहुत ही मोहब्बत और तवज्जो भरा था। चाय का कप भी हसन ने उसे खुद थमाया और गाहे बगाहे हर चीज़ के बारे में पूछता रहा। मारू गुड़िया, ये लिया तुमने, ये खाकर देखा, उसका टेस्ट बताओ कैसा लगा? मगर वो उसकी झिझक दूर करने में नाकाम ही रहा। उसके अंदाज को नीला नहीं हर उस शख्स ने कुछ हैरत और दिलचस्पी से देखा जो इससे पहले पहली बार मिल रहा था। उनमें कुछ देर पहले आकर उस महफिल में शरीक होने वाले आजिर और लैला भी थे, जबकि बाकी सब तो उसकी आदत जानकर आदी हो चुके थे। वो थी भी इतनी प्यारी और इतनी नाजुक सी कि ये सब उसके साथ सूट भी करता था, मगर जिब्रान उस गुरेज और लोगों से उसकी घबराहट की वजह जानता था। 4 साल पहले जब वो क्लास 9th में थी,
झूले से गिरकर टांग फ्रैक्चर करवा बैठी झूले से गिरकर टांग फ्रैक्चर करवा बैठी थी। ठीक होने के बाद भी उसे ये वहम रहा कि वो अब भी ठीक से नहीं चल सकती। वो महफिलों में लोगों के हुजूम में, यहाँ तक कि कॉलेज जाते हुए भी घबराती थी। ये एहसास कि वो ठीक से चल नहीं पा रही और सब उसे ही देख रहे हैं, उसे दोबारा से बाएतमाद होने ही नहीं देता था। अंकल सज्जाद की अपनी मसरूफियात, अकीला खाला घरेलू खातून, सो बखेड़े, दोनों भाई उससे काफ़ी छोटे और आपस में ही बेतकल्लुफ़। वो तो बिल्कुल तन्हा थी। ऐसे में हसन मामू जब भी उनके यहाँ आए, उस प्यारी सी भांजी के अंदाज पर ज़रूर चौंके और उसे कंपनी देने लगे। और अब यहाँ आकर हसन मामू के साथ साथ जिब्रान ने भी उसे उन्हीं जैसी मेहरबान सी तवज्जो से नवाजा कि हसन मामू से वो उसके गुरेज और हिचकिचाहट की वजह जान चुका था। चलो सब आंख मचोली खेलते हैं। ये तजवीज़ चाय के बाद लैला की थी, जिसे सिर्फ आसिर ने रहा। उठो ना जिब्रान, तुम पहले तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधेंगे। जिब्रान ने यूं ही मारूफ की तरफ देखा और उस वक्त उसके चेहरे पर शदीद बेचैनी और कुछ खौफ के रंग देख कर हैरान रह गया। अरे तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। मम मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेल सकती। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे उभर आए थे। अरे इतना डरती क्यों हो? लैला ने ठट्ठा लगाया। हम में से तो कोई भी नहीं खेलेगा। बानो के कहने पर सोनिया और दूसरी लड़कियां इस बात में सर हिलाने लगी, जबकि अनीला भी लैला की तरह मारूफ को बगौर देख रही थी। बानो का इतना कहना था कि मारूफ रिलैक्स दिखाई देने लगी। कमाल है, ऐसा मैंने क्या कह दिया था? लैला ने सर झटका। भाई महफिल कुछ बोर होने लगी है, हल्ला गुल्ला होना चाहिए। आजकल हाजिर लैला के गिर्द मंडलाता दिखाई देता था और खालदा बेगम भी लैला और उसकी वालदा को खास अहमियत दिया करती थी, जो हल्ले गुल्ले के शौकीन है। वो हाथ खड़ा कर ले। जिब्रान ने मुस्कुराकर हाजरीन पर निगाह डाली थी। हाजिर को उसका यूं मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। लैला और अनीला से कहा, उठो कहीं बाहर चलते हैं। अनीला हसन की मौजूदगी में उठना नहीं चाह रही थी। मूड नहीं हो रहा कहकर इनकार कर दिया। हाजिर लैला को लेकर चला गया। तुम्हारी भांजी बहुत आने लगी है इधर। चंद रोज तक जायजा लेने के बाद बड़ी मायने खेज अंदाज में खालदा बेगम अतिया से कह रही थी। अतिया को उनका यूं कहना अच्छा नहीं लगा, मगर जवाबन कुछ कहा नहीं। सोनिया का सूट काटने में लगी थी, उसी में लगी रही। ध्यान रखा करो, जवान बच्चियों वाला घर है। वो और तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही दोस्त है। कपड़ा आतिया के हाथ से छूट गया। अगर मेरा भाई इस घर में आता है तो वो गलत, मेरा बेटा गलत, और मेरी भांजी खराब किरदार की, सिर्फ इसलिए कि मैं कमजोर औरत हूँ। वरना आजिर की हरकतें कौन नहीं जानता। लैला की हर किसी से हद से बड़ी बेतकल्लुफी ढकी छुपी बात नहीं, मगर कोई उसे कुछ नहीं कहता। खालदा तो अपनी सुनाकर चली गई। बेबसी के एहसास से उन्हें रोना आ गया। इसी वक्त जिब्रान उनको ढूंढता हुआ इधर आया। रोते देखा तो बेचैन होकर वजह पूछने लगा। वो बच्चों से दोनों खवातीन के रवैयों की शिकायत नहीं किया करती थी, मगर आज हालत कुछ ऐसी थी कि छुपा नहीं सकी, सब कह दिया। फिर आखिर में बोली, तुम दोनों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे अच्छे, बहुत अच्छे और नेक बच्चे हो। और वो मारूफ बेचारी तो पहले ही लोगों के बीच उठने बैठने से घबराती है। बेटा, तुम उन लोगों को नहीं जानते। किसी की इज्जत आबरू पर हर्फ आता है तो आए, उन्हें बातें बनाना है, बनाते चले जाएंगे। बस तुम मोहतात रहा करो। ऐसा क्या देख लिया है उन्होंने हम में, और हम किस बात के लिए मोहताज रहे? आप उनकी परवाह करनी छोड़ दें और खुदा के लिए चुपचाप हर बात मत सुन लिया करें। उनके बेटे की जो हरकतें हैं वो सारा शहर जानता है, मगर आंटी अंकल के लिए आजिर बहुत शरीफ बाकिरदार मासूम बच्चा है। वो जो भी करे हमें क्या, मगर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अकीला इतने बरसों के बाद मुझसे मिली है, वो बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती उसकी ये खुशी आंसुओं में मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपका बेटा ज़रूर हूँ, मगर आपकी तरह बुज़दिल और मजबूर नहीं हूँ। हालदा आंटी की हर बात का जवाब मैं बहुत अच्छी तरह लौटा सकता हूँ। अतिया सर झुकाकर भीगी पलकें साफ करने लगी। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला, मैं तो भूल ही गया। हसन मामू ने एक बात कही थी और ताकीद की थी कि जल्द ही आपके कानों में भी उंडेल दूँ। क्या कहा हसन ने? कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? ओहो अम्मा, हर वक्त वसवसों में मत घिरी रहा करें। हसन मामू ने आपको कभी गौर से नहीं देखा। वो बड़े हो गए हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो खुशी की बात है। और अकीला बता रही थी वो हसन के लिए लड़कियां भी देख रही है। अब यहाँ आकर दोबारा से ये सिलसिला शुरू कर रही है। आप खाला को मना कर दें। मामू जिंदगी के साथी के तौर पर किसी और को चुन चुके हैं। अच्छा, कौन है वो? अतिया सा भूलकर मुस्कुराने लगी। वो लड़की इसी घर में रहती है। इसी घर में? मगर यहाँ तो बहुत सी लड़कियां हैं। खुदा खैर करे, किसे पसंद कर लिया हसन ने? कहीं अनीला तो नहीं? वो हसन की आमद पर जो आकर बैठती है तो हिलने का नाम नहीं लेती। मगर कह देना हसन से, मैं अनीला के लिए कभी उसका रिश्ता नहीं डालूंगी। वो फिर से अफसुर्दा दिखाई देने लगी। इतना बेवकूफ समझती हैं अपने भाई को? उन्होंने तो शायद कभी गौर से अनीला की तरफ देखा भी नहीं। उन्हें तो अपनी आसिया बाजी अच्छी लगी हैं। कहते हैं अतिया बाजी की तरह सादा खामोश साबिर लड़की है, मगर मैं उसकी किस्मत अतिया बाजी से मुख्तलिफ बनाना चाहता हूँ।
सच, तुम सच कह रहे हो जिब्रान। ओह, हसन ने कितना अच्छा फैसला किया है। मैं जब ये खबर आपा को सुनाऊंगी, वो कितनी खुश होंगी। आसिया के लिए वो आजकल वैसे भी बहुत परेशान रहती हैं। आप अभी जाकर उनसे बात कर लें। फिर हम जल्द ही धूमधाम से मंगनी वगैरह करेंगे। और हाँ, प्यारी माँ, एक बार जो घर में ये शादी ब्याह मंगनी शंगनी का सिलसिला शुरू हो तो फिर इसे रुकना नहीं चाहिए। समझ गई शैतान, तू बैठ, मैं आपा के पास जा रही हूँ। वो उजलत में दुपट्टा सेट करती कमरे से निकल गई। जिसने भी उस घर में आसिया के लिए हसन का प्रपोजल के बारे में सुना, सिर्फ और सिर्फ हैरत का इजहार किया। हालदा बेगम और बड़ी फूफी के अंदाज में तो हसद की झलक साफ थी। छोटी पुप्पो भी माँ फैमिली चली आई और आते ही शोशा छोड़ा। रिश्तों का क्या है, आते रहते हैं, आखिरी फैसला तो अब्बा का होगा। और ये बात उस वक्त कही जब घर के तकरीबन सभी अफराद बड़े अब्बा के कमरे में जमा थे। हालदा बेगम और बड़ी फूफी के साथ साथ उनके बच्चों की आंखों में भी चमक आ गई। और इधर खदीजा और आसिया के चेहरे पीले पड़ गए। वो बखूबी जानती थी अब्बा वही फैसला करेंगे जो बेटियां उनसे कहेंगी। और बेटियों के अंदाज तो बहुत वाजे थे, वो कभी ये रिश्ता ना होने देती। जिब्रान ने आसिफ की तरफ देखा। बैसाखी कुर्सी की साइड पर रखी वो होंठ बेंचे बैठा था। जिब्रान ने अब के उसके हाथ पर हाथ रखकर अपनी जानिब मुतवज्जे किया और आंखों ही आंखों में इशारा किया। आसिफ उसकी बात समझ गया और बोला, मैं आसिया का बड़ा भाई हूँ और ये आसिया की वालदा हैं। अपनी बहन और बेटी के बारे में फैसला तो हमें ही करना है। अच्छा, टांग टूटने से अकल आ गई है, चचा सखावत ने मजाक उड़ाया। और उनके इस मजाक को उन्हीं जैसों ने खूब एंजॉय किया। बदबख्त दादा को कुछ नहीं समझता, ये नहीं गुनाहों की सजा है जो टांग तुड़वा बैठा है। अरे, जिसके दफ्तर में चंद रुपयों का मुलाजिम है, उसी को बहन सौंप रहा है। जमाना थू थू करेगा, उंगलियां उठाएगा, हमारे तो खानदान की नाक कट जाएगी। बड़ी फूफी का जहन काम करने लगा था। हाय, नाक तो कटा दी फरहान ने। जिब्रान ने सीने पर हाथ मार कर आह भरकर कहा। कुछ देर के लिए बड़ी फूफी की बोलती बंद हो गई, मगर छोटी बुप्पो ने सहारा दिया। बोली, लड़के कुछ भी कर लें, इज्जत बेइज्जती तो लड़की की वजह से हुआ करती है। तो हमारी लड़की ने कौन सा गलत काम किया है? जिब्रान सीधा हो बैठा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, सहावत चचा ने हाथ उठाकर कहा, कुछ भी हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर ये शादी हुई, मैं बाइकआउट कर दूंगा। आसिफ भाई, आप भी कहाँ इन फारिग लोगों में आकर टाइम बर्बाद कर रहे हैं? याद नहीं हम दोनों को आज ही खरीदारी के सिलसिले में शादमान जाना था? जिब्रान ने उनकी बात के फौरन बाद यूं कहकर गोया ऐलान कर दिया कि उनके नज़दीक चचा का शामिल होना ना होना कोई अहमियत नहीं रखता। वो तिल मिलाकर रह गए और रतिया से कहने लगे, ये तरबियत की है बच्चों की, उसे बड़ों से बात करने की तमीज़ तक नहीं। जिब्रान चूंकि उठ खड़ा हुआ था, इसीलिए अतिया और उसके साथ साथ हदीजा और लड़कियों ने भी यहाँ से जाने में बेहतरी समझी। घर के अफराद ने आसिया के रिश्ते के सिलसिले में जो रवैया अपनाया, वो तो उन्होंने देख ही लिया था। इसलिए फैसला ये हुआ कि यहाँ कोई तकरीब करने के बजाय हदीजा और अतिया बच्चों के साथ अकेला हालांकि यहाँ चली जाएं, वहीं आसिया को जोड़ा और अंगूठी पहना दी जाए। दोनों खवातीन डर भी रही थी, मगर आसिफ और जिब्रान की यही जिद थी। आज तक उन लोगों ने हमारी कहाँ परवाह की है, और अब तो वो साफ रोड़े अटका रहे हैं। बस हम यहाँ रस्म नहीं करेंगे। आसिया और बानो खौफजदा थीं, जबकि राहत और सोनिया इस सिलसिले में जिब्रान और आसिफ से 100% मुत्तफिक थीं। चंद रोज के बाद ही अकीला के यहाँ ये लोग इकट्ठे हुए। कहा तो यही था कि सब सादगी से होगा, मगर हसन ने अच्छा खासा एहतमाम कर रखा था। बहुत खूबसूरत साड़ी, गोल्ड का सेट और 4 जोड़े। खाने का भी मुकम्मल इंतजाम था और इन इंतजामात में जिब्रान पेश पेश था। तुम तो कहते थे चाय होगी। खदीजा आंटी खुश भी थी, अपनी कमाईगी का एहसास भी शर्मिंदा कर रहा था। वो तो हसन को सादा से सलवार सूट और 1,000 रुपए के अलावा कुछ ना दे सकी थी। चाय का मूड हो रहा है तो चाय भी पिलवा देते हैं। जिब्रान हंस पड़ा था। बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पूरा यकीन है मुझे इतनी खुशियां दिलवाने में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ जरूर है। लीजिए, आज इतने सालों के बाद आपने गैरों वाली बात कर दी। क्या हमारी खुशियां जुदा जुदा हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हें हर नेमत से नवाजे। फिलहाल आप ये ब्रोस्ट चख चख कर देखें, असल में ये भी बहुत सी नेमतों में से एक है। और हाँ जिब्रान, घर जाकर ये बात किसी तरह सबको बताएंगे। सोच सोच कर मैं तो परेशान हो रही हूँ। ये आप मुझ पर और रासिब भाई पर छोड़ दो और प्लीज आज तो खुश रहें। इक़्तिदार का सूरज तो लगता था बस गुरूब हुआ चाहता है। जो कुछ बैंक में था वो सब फरहान ने डुबो दिया। रेहान था तो उठते बैठते जताना नहीं भूलता था, आपने हमसे छुपाकर इतना कुछ बैंक में रखा हुआ था। खालदा बेगम सहावत अलग खफा और बेजार दिखाई देते थे। सबसे बढ़कर इस मरतबा जब सुल्तान का फोन आया तो उसने अपनी बीमारी की इतला देते हुए कहा था, मैंने सौतेले बच्चों को बहुत मोहब्बत दी, मगर ये खून है ही बेवफा, मेरे नहीं बन सके। अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और इस मर्तबा उन्होंने मुझे इसी कदर दिया है कि बमुश्किल गुज़र औक़ात ही कर सकता हूँ। पाकिस्तान भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाय भैया, तो हम क्या हवा खाएँगे? आपा, मैं क्या करूँ? बहुत मजबूर हूँ। आप प्लीज़ मेरे बीवी बच्चों को बुलवाएँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आज बरसों के बाद उन्हें बीवी बच्चे याद आए थे। ये वही दिन था जब ये लोग आसिया और हसन की
बात पक्की करने के सिलसिले में अकीला के यहाँ जमा हुए थे, इसलिए सुल्तान की उनसे बात ना हो सकी। बड़ी भूपी को अपने बेटों से कोई अच्छी उम्मीदें नहीं थीं। बेटियों के बारे में ख्याल था, सईदा बाजी हाँ करेंगी तो अब सादगी से ही उन्हें रुखसत कर देंगी, मगर हर हफ्ता 2 हफ्ता बाद खातिर करवाने के लिए आ जाने वाली सईदा बेगम कोई ऐसी नेक फितरत हस्ती तो ना थी। खालदा की जुबानी उन्हें इल्म हो गया था। बड़ी फूफी तमाम असासा बेटे के हाथों गवा बैठी और उसी रोज से उन्होंने आना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने आखिर खुद ही राय लेना चाही तो साफ इनकार कर दिया। यह सदमा भी कुछ कम न था। सोच सोच कर उसी में बेहतरी नजर आई कि जिब्रान से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, दूसरे छोटे भाई और छोटी भाभी की मजीद चापलूसी की जाए। लैला आजकल आजिर के साथ बहुत नजर आती है, बल्कि आजिर ही उसके आगे पीछे रहता है। अगर लैला की दोस्ती रेहान से हो जाए, उसमें भी बहुत फ़ायदा है। दूसरा अकीला की बेटी मारूफ बेटी मासूम भी है, इकलौती भी, और उसका बाप हसन के साथ कारोबार में भी लगा है। ये लड़की भी अगर रेहान से मुतासिर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये हसन, काश मैंने उसके बारे में पहले सोचा होता। अब तो लगता है आसिया के लिए वो सीरियस हो चुका है, वरना मेरी इतरत या सोबिया अगर उसकी हो जाती तब तो वारे न्यारे हो जाते। यही सब सोचकर उन्होंने अपने रवैये को तब्दील करने का फैसला किया और इस सिलसिले में बच्चों को भी एतमाद में ले लिया। साफ कह दिया, अब खालदा या अपने मामू के आगे पीछे फिरने की जरूरत नहीं। जिब्रान से दोस्ती में बहुत फायदा है। जब आसिफ और जिब्रान ने घर आकर मिठाई के साथ आसिया और हसन की बात तय होने की इतला दी तो खिलाफ तवक्को उन्होंने पहले भावज और फिर भतीजी को गले लगाकर दुआओं से नवाज कर सबको बेहोश ही तो कर दिया। जबकि हालदा बेगम ने खूब वावेला मचाया, मगर अकेली की कौन आवाज कौन सुनता। ए अतिया, अपना जिब्रान भी अब तो माशाल्लाह इतना अच्छा कमा रहा है, उसके लिए भी कुछ सोचो। वो तो हस्बे आदत अस्बात में सर हिला कर रह गई। जिब्रान कहने लगा, जब तक अपने लिए अच्छा सा घर नहीं बना लूंगा शादी नहीं करूंगा। इस घर में क्या बुराई है, फिर यहाँ सब मिलजुल कर रह रहे हैं। जिस हिस्से में आप और चचा की फैमिली रहती है वो हिस्से वाकई बिल्कुल बुरे नहीं हैं, मगर हमारे वाले तो बहुत खराब है। तो उन्हीं की को मुरम्मत करवा लो। पराई जमीन पर मैं क्यों पैसा लगाऊं? पराई क्यों, तुम्हारे दादा के नाम है, तुम हिस्सेदार हो। जब बाप ने ही कह दिया कि मेरे पैसे पर तुम लोगों का कोई हक नहीं, फिर दादा की जायदाद पर क्या नजर रखूं? बेटा, मिलजुल कर रहने में बहुत फायदे हैं। उन्हें तो घर का चूल्हा भी ठंडा दिखाई देने लगा, इसीलिए जिब्रान को राम करना चाहती थी। जिन्हें फायदे हैं वो रहे, हमने तो नुकसान ही उठाया है। वो तुम्हारे अब्बा भी अब तो पाकिस्तान आने के मंसूबे बना रहे हैं। अब्बा के मंसूबों से हमें क्या लेना देना? उन्होंने सारी उम्र आपको और दादा को ही सब कुछ समझा है। बीवी बच्चे उन्हें नए मिल गए हैं, हम कौन होते हैं उनके? अतिया, समझाओ बेटे को, जवान और गर्म खून है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, वरना मुझे पता है ये बड़ा समझदार बच्चा है। वो जिब्रान से किसी सूरत बिगाड़ना भी नहीं चाहती थी। उनके हालात क्या बदले, घर का माहौल अचानक ही बड़ा दोस्ताना और अपनायत भरा हो गया। अब तो अक्सर इतरत और सोबिया किचन में दिखाई देती, सोनिया और अतिया के साथ हंसी मजाक चलता और बानो वगैरह को भी साथ साथ शामिल रखना पड़ता कि जिब्रान उन्हें भी बहनों की तरह अजीज रखता था। जिब्रान घर आता फिर तो किसी का भी उनके पोर्शन से हिलना गुनाह हो जाता। सोबिया ने अपने बरामदे के पिलर के साथ रखे गमले भी लाकर जिब्रान के कमरे के बाहर सजा दिए थे। अक्सर उसके लिए कोई ना कोई खास डिश भी बन जाती। जिब्रान का हालांकि हाँ आना जाना था, और अब तो मारूफ की उससे झिझक बिल्कुल दूर हो चुकी थी, बल्कि वो उसकी आमद की मुंतजिर रहती। जिब्रान ने उसका एतमाद बहाल करने में बहुत मदद की थी। वो अक्सर उसे अपने साथ घर भी ले आता। हालदा बेगम शक्लें बनाकर घूर कर ये वाजे करने की कोशिश करती कि वो ये सब देख और समझ रही हैं। जिब्रान बुरी तरह नज़रअंदाज करके उन्हें जला देता, जबकि बड़ी पुप्पी कुछ और सोच रही थी। वो मारूफ के बड़े बहुत वारी सदके जाती और फरहान अगर घर पर होता तो उसे फौरन इधर भेज देती। मगर जिब्रान बातों बातों में जिस तरह मजाक उड़ा जाता था उस पर, लड़कियां जो खुलकर दाद देती थीं, उससे फरहान बड़ा तंग था। मारूफ से अकेले में कोई बात कहने का तो मौका ही नहीं मिलता था। ए सुनो, तुम्हारी माँ मना नहीं करती तुम्हें? एक रोज जब मारूफ किचन में चाय के बर्तन रखने के लिए आई, खालदा बेगम को मौका मिल गया। किस बात से आंटी? वो बेचारी क्या समझती, यही जो तुम जवान लड़के के साथ चली आती हो। हमने तो यहाँ घर में ही आते देखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी। दूसरा जुमला खुद कलामी के अंदाज में अदा हुआ। मारूफ के हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचे। वो सरासमगी के आलम में हालदा बेगम की सूरत देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? हैरत हुई मुझे तुम माँ बेटी पर। आंटी, मैं तो और कहीं नहीं जाती। वो फटी फटी आवाज में सफाई देने की कोशिश कर रही थी। खालदा सर झटक कर बाहर निकल गई और मारूफ वहीं बैठकर रोने लगी। उसे यहाँ बैठे खासी देर गुजर गई तो आसिया उसे देखने किचन में आई। जो यूं रोता देखा तो ठिठक गई। अरे मारूफ, चंदा क्या हुआ? चोट लग गई या किसी ने कुछ कहा है? मारूफ को तो शाना चाहिए था, लिपट गई उससे और रोने की रफ्तार में मजीद तेजी आई। आसिया घबरा गई और उसे कमरे में सबके पास चलने को कहने लगी। मैं नहीं जाऊंगी वहां, आप ऐसा करें अंदर से मेरी चादर ला दें, मैं घर जाऊंगी।
हाँ हाँ, घर भी चली जाना, मगर अभी नहीं। पता है जिब्रान जिब्रान जू जाने का प्रोग्राम बना रहा है, मुझे नहीं जाना। हुआ क्या है? जिब्रान की कोई बात बुरी लगी है क्या? उसने जोरों शोर से नफी में सर हिलाया, फिर रुक रुक कर आंसुओं के दरमियान हालदा बेगम के अल्फाज दोहरा दिए। ओह, तुम उनकी बातों को दिल पर ले बैठी, उनकी तो आदत ही ऐसी है। मगर मैं अपने किरदार पर कोई धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये दुनिया है मारूफ, और ये उंगली उठाने से नहीं चूकती। बेहतर यही होता है कि उसकी तरफ से कान बंद कर लो, बस अपने जमीर की सुनो और उसे मुतमईन रखो। उन्होंने मुझे ऐसी नजरों से देखते हुए ये बातें कही कि मैं कट कर रह गई। क्या उनकी अपनी बेटियों के साथ? उनकी बेटियों को तो तुम रहने ही दो। चलो आओ, मुंह हाथ धो लो और सबके साथ आकर बैठो। नहीं प्लीज, मुझे मजबूर ना करें, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बाद में आसिया की जुबानी जिब्रान को ऐसा बिल्म हुआ, गुस्सा तो बहुत आया, मगर फौरन जाकर खालदा बेगम से उलझा नहीं। बस यही कहा, उन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। उनके मैके से लड़के यहाँ आते रहते हैं। अनीला नाइला जिसके साथ जहाँ जाने को जी चाहता है चल पड़ती हैं। नाइला को तो मैंने कई बार अपने उस लंबे बालों और लंबे मुंह वाले कजन के साथ किसी ना किसी आइसक्रीम पार्लर पर खड़े देखा है। तब खालदा आंटी क्या भंग खाकर सोई होती थी। तुम तो जानते हो, दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होना उनकी आदत है। मगर मारूफ से उन्होंने ऐसी बात क्यों की? उसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। शाम को सब इकट्ठे बैठे थे। खालदा बेगम भी बेटियों की वजह से इधर चली आई। तब जिब्रान ने नायला से कहा, क्या बात है, आजकल सैर सपाटे कम हो गए हैं। तुम्हारा वो घोड़े के फेस वाला कजन भी नहीं आ रहा। आइसक्रीम पार्लर तुम दोनों के बगैर वीरान है, और तुम्हारे नामों की दुहाइयां दे रहे हैं। क्या मतलब है? किसकी बात कर रहे हो? खालदा बेगम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी उन्हीं की, जो इस घर में सरेआम दंदनाते हैं और साहबजादियों को घुमाते फिराते हैं, सैर कराते, झूला झुलाते हैं। वो नायला का खालाजाद होता है, किसी को एतराज का कोई हक नहीं। नहीं, खैर एतराज का हक तो इस घर में खामखा हासिल कर लिया जाता है। अतिया, तुम क्या कान लपेटे बैठी रहती हो? समझाओ बेटे को, बहुत बदजुबान है, एक रोज सर पकड़ कर रोगी। ऐसा मैंने क्या कह दिया? बस आपको इतना ही याद दिलाया है, दूसरों पर कीचड़ उछालने के बजाय अपने गिरबान में झांकना सीखिए। और याद रखिए, मैं वो नहीं जो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर लूं। वो झटके से उठी और बेटियों को भी साथ आने की हिदायत करती कमरे से निकल गईं। खस कम जहां पाक। इतरत उनके जाने के बाद हंसी, और जिब्रान ने सोचा, कभी इतरत और इन लोगों की किस कदर दोस्ती थी, मगर अब ये लोग हमारी हमदर्द बनी यहाँ घुसी रहती हैं। वाह जमाने, क्या क्या चाल है तेरी। जिब्रान, किसी रोज आउटिंग का प्रोग्राम बनाओ ना। इतरत के कहने पर उसे असबात में सर हिलाया और बोला, प्रोग्राम बनाने में कौन सा पैसा लगता है, अभी बना लेते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है, अमल भी होना चाहिए। फिर लाओ अपनी माँ से पैसे, मुझे पूरा यकीन है उन्होंने अब भी बहुत कुछ छुपा रखा है। मुकम्मल बर्बादी का सिर्फ ड्रामा करती हैं। जिब्रान, मेरी अम्मी तुम्हारी भी पुप्पो होती हैं। हाँ, ऐसी पुप्पो जिनकी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती। मिले भी कैसे, मोहब्बत भी नहीं मिलती, कहकर खुद ही मजा लिया। इतरत ने बनावटी अंदाज में घूर कर देखा और बोली, मेरे सामने इस तरह की बातें इसलिए कर जाते हो, पता है मैं अम्मी को बताऊंगी नहीं। अच्छा, नहीं बताओगी? वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो उनके सामने भी ये सब कह सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम बहुत निडर हो। अच्छा, कुछ दिन पहले तक मेरे लिए बदतमीज़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ करता था। खाला का फ़ोन है भाई, सोनिया ने बताया। इतरत ने मुँह बना लिया और बोली, इतना मज़ा आ रहा था। ये दरमियान में फ़ोन कहाँ से टपक पड़ा। जल्दी आना, ये ना हो रिसीवर के साथ ही चिमट जाओ। अकीला कह रही थी, तुम निहारी बना रही हूँ। बाजी और सोनिया को लेकर आ जाओ। मैं तो आप लोगों को इधर बुलवाने वाला था। नहीं जिब्रान, हमें मत बुलवाओ, वो तुम्हारी खालदा आंटी बहुत गलत बातें करती हैं। अब मारूफ तो आप बिल्कुल भी वहां जाने को तैयार नहीं है। बेवकूफ़ है मारूफ, आप समझाएं उसे। क्या समझाऊं बेटा? लड़कियों की इज्जत के मामले बड़े नाजुक होते हैं, और खालदा बेगम जैसी औरतें बहुत सफाक हुआ करती हैं। खाला, उन लोगों का तो काम ही हम में कीड़े निकालना है। अच्छा, बाजी किधर है? उन्हें बुलाओ। उनके कहने पर वो माँ को बुलाने के लिए उठा। सोनिया उन्हें पहले ही इतला दे चुकी थी, वो उधर ही आ रही थी। दोनों बहनों में बातें होने लगीं। खालदा का जिक्र भी हुआ। मारूफ ने जिस तरह उनकी बातों का असर लिया था वो भी बताया। अतिया कहने लगी, तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। जिब्रान इन मामलात को नहीं समझता। मारूफ कुछ रोज उधर उधर ना आए, मैं खुद आकर अपनी बेटी से मिल लिया करूंगी। फोन सुनकर करके पलटी। जिब्रान पीछे ही खड़ा था। तुम क्या हमारी बातें सुनने खड़े हो गए थे? जी हाँ, इसीलिए खड़ा हुआ था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था खाला भी आप ही की तरह बुज़दिल हैं। ये बुज़दिली नहीं, मसलहत है बेटा। वैसे तुम्हें मारूफ कैसी लगती है? अच्छी है, अच्छी ही लगेगी। मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ, मगर अब खालदा की वजह से डर भी लगता है। वो कहेगी वाकई ऐसी ही बात थी, जब तो लड़के की शादी वहां कर दी। शादी करना क्या बुरी बात है? और अभी जो ये खालदा आंटी की वजह से आप कदम पीछे हटा रही हैं, तो सुन ले, मैं भी शादी करूंगा तो सिर्फ मारूफ से।
तुम्हें कुछ एहसास है? वो सर पकड़ कर बैठ गईं। किस बात का एहसास? जिब्रान को इन खवातीन के वहमों पर वाकई गुस्सा आ रहा था। लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है, और फिर मारूफ जैसी संभल संभल कर रहने वाली लड़की। शादी करने से इज्जत में बट्टा थोड़ी लगता है। देख लीजिएगा, हालदा चची अपना समूह लेकर रह जाएंगी। खैर, आपकी समझ में बात नहीं आती, मैं मामू से बात करूंगा। आप दोनों बहनों को वही हैंडल कर सकते हैं। देखो, तुम हसन से कुछ नहीं कहोगे, मैं अकीला से बात तो कर लूं। हसन मामू खुद ही उनसे बात कर लेंगे। आप बस खालदा आंटी के माथे के बल देख कर घबराया करें। अतिया, तुम्हें अब्बा बुला रहे हैं, लेकिन लगता है तुम माँ बेटा किसी अहम मीटिंग में मसरूफ हो। खालदा बेगम ने इधर झांका मखसूस अंदाज में इतला दी। जी हाँ, वाकई अहम मीटिंग है। असल में मेरी शादी की बात हो रही थी। तुम्हारी शादी किससे हो रही है? कान खड़े हो गए। जब कार्ड मिलेगा पढ़ लीजिएगा। कार्ड पढ़ने से की क्या जरूरत है हमें? जैसे मालूम नहीं कौन हो सकती है। वही बात, वही कटीला मायनी खेज अंदाज। अतिया तो घबरा गई। खालदा बेगम अपनी बात कहकर पलट गई। अतिया ने बेटे की पुष्ट पर धप रसीद की और बोली, क्या जरूरत थी बकवास करने की? देखा कर गई ना, कर गई है ना फिर वही गिरी हुई बात। और तुम कह रहे हो मारूफ के लिए रिश्ता डालूं ताकि उनका शक सच साबित हो जाए। आप मुझे ये बताएं, उन लोगों को अहमियत ही क्यों देती हैं? कहने दे जो कहते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर अब हमें उनके साथ रहना भी नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, ज़िंदगी के कितने ही बेहतरीन साल इस घर की सियासत और चिक चिक की नज़र हो गए, मगर अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कहाँ जाएंगे हम? अरे अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? खुदा की ज़मीन तो बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। वो आपा रशीदा जिक्र कर रही थी, तुम्हारे अब्बा वापस आने का सोच रहे हैं। अच्छा, फिर? उससे भवें उचकाकर सवाल किया। फिर क्या, यही कि वो यहाँ आएंगे तो फिर हमें इधर ही रहना पड़ेगा। बस अम्मी, अब मजीद कुछ नहीं। पता नहीं आप खवातीन ऐसी क्यों होती हैं। कितनी ज्यादती की है हमारे उन अब्बा जान साहब ने हमारे साथ। बचपन तरस कर गुजरा, जवानी मेहनत करके अपनी पढ़ाई की फीस करने में, और वो वहाँ इतना कमाते और ऐश करते रहे। अब जब वहाँ कोई पूछने वाला नहीं रहा, वापस वतन तशरीफ ला रहे हैं, आप हार फूल लिए खड़ी हैं। सख्त गुस्सा आता है मुझे। और ये भी बता दूं, इस्लाम ने औरत के मुकाम को इस तरह नहीं गिराया। ये औरतों ने खुद ही से अपने लिए फर्ज कर लिया है। हमारे मजहब में तो मर्द पर यह फर्ज है कि वो औरत को चादर भी दे और चार दीवारी भी। मगर हम एक ही घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, और फिर बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हमारे यहाँ तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम राइज है। हम सब मिलकर बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। हालांकि मैंने इकट्ठे रहने वाले उन लोगों के दिलों को एक साथ धड़कते नहीं देखा। ये जबरी मोहब्बत इंसान कर ही नहीं सकता। अक्सर देखा गया है, जब उन इकट्ठे रहने वालों के बच्चे बड़े होते हैं तो उनके दिलों में एक दूसरे के लिए बेजारी और बेगानगी के सिवा कुछ भी नहीं होता। हमारी कहानी अनोखी नहीं है। इस सिस्टम का अंजाम कमोबेश ऐसा ही हुआ करता है। बड़े अब्बा कभी नहीं मानेंगे जिब्रान। बड़े अब्बा हमारे बुजुर्ग हैं, गो कि उन्होंने कभी हम भी हमें अपना नहीं समझा। मगर फिर भी मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे साथ चलें। अगर वो उस पर राजी नहीं होते तो उनकी मर्जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी में अब आकर कुछ सुकून आया है, तुम उसे फिर बर्बाद ना कर देना। आप हर बात पर होलाना तर्क करके खुश रहना सीखिए। और हाँ, मेरी बात तो बीच में ही रहेगी। फिर कब करेंगी खाला से मारूफ की बात? अच्छा बाबा, कर लूंगी। मगर मुझे लगता है इन हालात में मानेगी नहीं। और अभी तो तुम कह रहे थे आप रहने दें, मामू खुद बात कर लेंगे। अच्छी माँ, मैं आपको इस अहम मामले में पीछे रखूंगा, ये भला हो सकता है? बस मामू खाला को राम करेंगे। जब उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर आप खाला की तरफ जाकर बाकायदा रिश्ता डालिएगा। हसन की जानिब से जहेज के सिलसिले में कोई मुतालबा तो था नहीं। बरी के लिए भी उसने रकम अतिया को देते हुए कहा था। आप आसिया को साथ ले जाकर उसकी पसंद से बनवा लें। अब रोजाना ही शाम में बाजार के चक्कर लग रहे थे। मौसम गर्म था, दिन में निकला नहीं जाता था। इधर धूप कम होती, इधर आसिया के साथ कभी राहत तो कभी सोनिया और अतिया बाजार चली जाती। बानों को बाजार का रश अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर घर पर ही रुक जाती। जुलाई का आखिर था, लॉन पर सेल लग चुकी थी, इसीलिए तो आज तो सब बाजार जा रही थी। बानों को भी कहा, मगर वो दोपहर से ही कुछ सुस्त हो रही थी। खांसी जुकाम की शिकायत के साथ अब हरारत भी महसूस होने लगी थी। वो सब चली गई। बानो इस हिस्से में अकेली रह गई। कुछ देर के बाद अनीला और नाइला भी तैयार होकर किसी सहेली के यहाँ चली गई। बड़ी फुप्पो का पोर्शन वैसे भी कुछ अलग थलग सा था। आसिफ भाई अभी नहीं लौटे थे। उनके दोनों बच्चे सो रहे थे। बानो किचन में चली आई और रात के खाने के लिए कीमा भिंडियां बनाने लगी। जिब्रान भी ऑफिस से लेट आया था, आते ही सो गया। जब आँख खुली, घर में गैर मामूली खामोशी और कमरे में कुछ घुटन महसूस करके वो बाहर आ गया।
सूरज गरूब हो रहा था और हवा बंद थी। वो हवा के ख्याल से छत पर चला आया, मगर यहाँ आकर भी मायूसी हुई। आसमान का एक किनारा सुर्ख था, यकीनन ये आंधी के आसार थे। गर्मियों में एक तो ये आंधियां बड़ी मुसीबत है। जब तक उठेगी नहीं, हव्स और गर्मी के मारे हाल खराब रहेगा, और जब उठेगी तो फिर सारी फिजा मट्टी और गर्द से भर जाएगी। वो कुछ देर यहीं छत पे पड़ी, एक पुरानी टूटी सी कुर्सी पर बैठा रहा। यहाँ एक कोने में ऐसे सामान की बहुतात थी जो थोड़ी बहुत मुरम्मत के बाद काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था, मगर ऐसी तवज्जो तो वहीं दी जा सकती है जहाँ घर से मोहब्बत होती है और हर फर्द उसे अपना घर ख्याल करता है। यहाँ मामला उलट था, इसलिए जो सामान ज़रा काबिल मुरम्मत होता वो छत पर पहुँच जाता। धूप और बारिश में खराब होकर आखिरकार बिल्कुल ही नाकाबिल इस्तेमाल हालत को पहुंच जाता। वो आसमान पर उड़ते कबूतरों को देख रहा था। यकीनन ये इस गली के आखिरी घर से उड़ाए गए थे। वहां अमजद रहता था और वो बचपन से ही कबूतरबाज था। नीचे से जो आवाजें आई थीं, उनमें कोई तो ऐसी बात थी कि वो चौंक गया था। जल्दी से कुर्सी छोड़कर सीढ़ियों की तरफ लपका था। पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही नीचे का मंजर वाज़ेह था। आजिर ओबाश और आवारा तो था ही, अपने ही घर में मगर अपने ही घर में वो ऐसी हरकत कर सकता है, ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बानो से हाथ छुड़ाकर भागी थी। आजिर ने हंसकर कुछ कहते हुए दुपट्टा पकड़कर उसे बेबस कर दिया था। जिब्रान तेजी से नीचे उतरा। कदमों की धमक पर आजिर ने मुड़ कर देखा। वो तो ये ख्याल किए बैठा था कि उस हिस्से में बानो के अलावा कोई नहीं। खालदा फूफो बड़ी फूफो के खालदा फूफो बड़ी फूफी के कमरे में बैठी थी और उसने मौका गनीमत जाना था। जिब्रान ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। इतना मारा कि वो बचाव के लिए शोर मचाने लगा। घर में मौजूद लोग कमरों से निकल आए। ओए, क्यों मार रहे हो मेरे बच्चे को? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि हम पर हाथ भी उठाने लगे? पूछिए अपने लाडले से, क्या किया है इसने? छोड़ो जिब्रान, चलो यहाँ से। बानो खौफजदा होकर उसे खींचने लगी। ये मामला ऐसा नहीं था जो बस यूं ही लड़ाई झगड़े के बाद दब जाता। घर आने पर सबके इल्म में आई। खालदा बेगम और सहावत ने तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया और कह दिया, हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये जिब्रान और बानो का घड़ा हुआ प्लान है। बड़ी फुप्पी का मफाद जिब्रान की हिमायत में था। बड़े अब्बा से भी उन्होंने यही कहा। आजिर बहुत बिगड़ चुका है, यकीनन उसने ऐसा किया होगा। क्या हो रहा है इस घर में? वो सर पकड़ कर बैठ गए। दफ़ा करें अब्बा, हमें क्या, बस आप सखावत से कहें वो दोबारा ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाए और अपना दरवाज़ा अलग कर ले। हम भी जवान बच्चियों वाले हैं। आजिर की मौजूदगी में तो बच्चियां घर में भी महफूज घर में भी महफूज नहीं। जब बड़े अब्बा ने सखावत से बात की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया और खालदा बेगम कहने लगी, इस घर में सबसे ज़्यादा हिस्सा तो हमारा है। हमने बहुत पैसा लगाया है, हम तो कभी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। जिसे एतराज़ है अलग हो जाए। जवान बच्चियों वाला घर है और तुम्हारे बेटे की ये हरकत नाकाबिले माफ़ी हरगिज़ नहीं। बड़ी फूफी को उनकी बात पर सख्त गुस्सा आया था। कह तो रहे हैं जिसे एतराज़ है अलग हो जाए। खालदा बेगम ने शाने उचकाए थे। और ये तुमने खूब कही भाभी साहिबा कि तुम्हारा पैसा लगा है। अरे कौन सा पैसा? सहावत की जो आमदन है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा आपा जान, ये जो आपने इतनी सारी ज़मीन अपने नाम पर खरीद कर शानदार कमरे डाल लिए, ज़रा उनका भी हिसाब दीजिए। ये रकम कहाँ से आई है? सखावत ने तब कर तंज किया था। इस बात का बड़ी पुप्पी के पास कोई जवाब नहीं था। बेहतर यही है आपा, आप हमारी मुखालफत ना करें। इतने साल हम बेशक अपने मफादात की खातिर ही सही, मगर मिलकर चले हैं। अब भी ऐसे ही चलने दें। बात दिल को लगी तो खामोश हो गई। घर का माहौल बहुत ज़्यादा कशीदा हो गया था। जिब्रान और आसिफ के कहने पर खदीजा और अतिया ने अपना किचन अलग कर लिया था। बड़ी फूफी ने एतराज़ किया, झगड़ा तो सखावत और खालदा से है, हमें क्यों अलग कर दिया? इसी तरह सबको काम करने की आदत पड़ेगी। इकट्ठे रहकर बहुत आदतें बिगड़ चुकी हैं। जिब्रान ने बिना किसी मुरवत के कहा था। फिर कुछ दिन के बाद आसिफ ने एक छोटा सा घर भी देख लिया। हम तो इकट्ठे रह सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? अतिया को धचका लगा। सोनिया भी सुनकर उदास हो गई। चची, ये फैसला मेरा और जिब्रान का है। जी अम्मी, आसिफ भाई ठीक कहते हैं। और देखिए ना, हमने इस घर में रहते हुए एक दूसरे के दुख को इसीलिए महसूस किया कि हम दोनों फैमिलियां हालात की सख्ती का शिकार थीं। इकट्ठे रहने में ही हमारी भलाई थी, मगर हम नहीं चाहते कि कल को हमारी आने वाली नस्लों में फिर वही कशमकश शुरू हो जाए। यूं भी मुश्तरका खानदानी निज़ाम इंसान को सुस्त और काहिल तो बनाता ही है, जीने के लिए नए नए रास्तों की दरियाफ्त की उमंग भी छीन लेता है। आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि दो कुंबों की जिम्मेदारी बखूबी उठा सकता हूँ। आसिफ भाई की आमदन कम है, हम इकट्ठे रहेंगे तो उन्हें अपनी आमदन बढ़ाने, अपनी ज़िंदगी का म्यार बुलंद करने के लिए मजीद मेहनत का ख्याल नहीं आएगा। मगर अलग रहने की सूरत में आसिफ भाई के साथ साथ राहत भाभी भी मेहनत करेंगी और ये दोनों अपने बच्चों के लिए जो घर बनाएंगे वो सरासर उनकी अपनी मेहनत का नतीजा होगा। उनके बच्चे सर उठाकर जिएंगे और दोनों खानदान इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ आपस में मिलते रहेंगे। हाँ चाची, हम सब छुट्टी का दिन इकट्ठे गुजारा करेंगे। तो बेटा, दूर क्यों जाती हो? इसी घर में एक हिस्सा अलग कर लो।
نہیں چچی، چونکہ ہمارے ابا اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے اس جائیداد میں ہم حصے دار ہیں ہی نہیں۔ اب ہم چھوٹا سا گھر لے لیں گے، آسیہ کی شادی ہو جائے گی، بانوں کی ادھوری تعلیم مکمل کروانا ہے اور اپنے حصے کا ہر بوجھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ خود اٹھانا ہے۔ امی، صرف آصف بھائی ہی نہیں، ہم لوگ بھی جلد ہی یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ بات عطیہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے خاموش رہیں۔ جبران اور معروف کی نسبت کی رسم دھوم دھام سے ادا ہوئی۔ عطیہ اور جبران خود سخاوت اور بڑی پھپھو کی فیملی کو مدعو کرنے آئے تھے۔ اس گھر کے حالات خاصے مخدوش تھے۔ لڑکیوں نے کہاں کبھی کام کو ہاتھ لگایا تھا، لڑکے برائے نام تعلیم کے باوجود اعلیٰ ملازمتوں کے خواب دیکھنے اور مفت کی کھانے کے عادی تھے۔ سلطان نے پچھلے کئی ماہ سے ایک پیسہ نہیں بھیجا تھا۔ 2 ماہ پہلے جو فون آیا تھا بتایا تھا بیمار ہوں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں اپنے بیوی بچوں سے بے وفائی کرنے والے سے۔ اب اس نئی دنیا نے بے وفائی کی تھی۔ جبران نے جب بتایا معروف سے رشتہ طے ہو رہا ہے، بڑی پھوپھی ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، لڑکیاں تو اس گھر میں بھی تھیں، جبکہ خالدہ کچھ نہیں بولی۔ رسم جس دھوم دھام سے ادا ہوئی، یہ دونوں خواتین جل کر رہ گئیں۔ بڑی پھوپھی خالدہ بیگم سے بولی، اے دیکھ لو قسمت کے پھیر، یہی خدیجہ اور عطیہ، ان کے بچے اچھے کپڑوں کو ترسا کرتے تھے۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اب انہوں نے اپنا راستہ آپ بنانا سیکھ لیا ہے۔ آپ نے بھی بچوں کو تعلیم دی ہوتی تو آج اچھے حال میں ہوتی۔ بچیاں تو ہماری بھی تھیں، یہ معروف ہماری بچیوں سے زیادہ اچھی تو نہیں۔ دفع کریں، ہماری بچیوں کو رشتوں کی کیا کمی، خالدہ نے اندر اٹھتے ابال کے تحت کلس کر کہا تھا۔ ادھر یہ جل بھون کر تنقیدی نظروں سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی، اور ادھر بااعتماد چہرے اور روشن ضمیر لوگوں کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ خلوص اور محبت کی روشنی سے چہرے منور تھے، اور اپنا بوجھ آپ اٹھانے کا اعتماد تھا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اور ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنے لیے راہ اپنائے اور جو اسے عزت اور اعتماد دے سکے، اور ہم لینے والے نہیں، دینے والے بن سکیں۔ زندگی زندہ باد، آزادی پائندہ باد۔